اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائک اوپن کریں۔ اچھا، یہ جو لیسن 10 ہے اس میں آپ کو پتا چلا کہ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھایا جا رہا ہے ہمیں؟ کچھ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے نا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ لیسن جو ہم نے پڑھا تھا کل، اور یہ ایکسرسائز بھی کی تھی کوشچن آنسر والی، تو اس میں آپ دیکھیں تو دو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے ضمائر، ٹھیک ہے؟ اور ضمائر جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ٹو ٹائپس کے ہوتے ہیں۔ ضمائر ہوتے ہیں نمبر ایک جو ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں اور دوسرے اٹیچڈ ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک رائٹ ہینڈ پہ ہوتے ہیں، ایک لیفٹ ہینڈ پہ۔ تو رائٹ ہینڈ پہ جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں، بڑے والے ضمائر جیسے ہوا، یا، ہم، یہ جو بڑے بڑے ہننا، یہ ضمائر جو ہوتے ہیں یہ آپ کے ڈیٹیچ ضمائر ہوتے ہیں۔ اور جو چھوٹے ضمائر ہوتے ہیں وہ لیفٹ ہینڈ پہ، وہ آپ کے اٹیچ ضمائر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیسیکلی تو دو طرح کے ضمائر ہو گئے نا۔ تو یہاں پر اب یہ والا جی ضمیر، سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ ضمیر کون سی ہے، اس کا نام کیا ہوگا بھائی؟ ضمیر متصل ہوگی نا؟ متصل اور متصل۔ ضمائر منفصلہ میں سے ہے کون سی ضمیر، کیا کہیں گے؟ مرفوع منفصل۔ مرفوع۔ مرفوع کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مبتدا وغیرہ بنتی ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ یہ رائٹ ہینڈ والی ہیں یا لیفٹ ہینڈ والی ہیں؟ رائٹ ہینڈ۔ رائٹ ہینڈ والی ہے۔ اور لیفٹ ہینڈ پہ جو ہوتی ہے وہ چھوٹی والی ہوتی ہیں۔ دو طرح کی ضمیریں، ایک ہیں ڈیٹیچڈ اور ایک ہیں اٹیچڈ، ٹھیک ہے؟ اب یہ ڈیٹیچ جو ہیں وہ آپ کو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، یہ ڈیٹیچڈ ہے، یہ بھی ڈیٹیچڈ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہ والی کون سی ہے؟ مجرور ہوتی ہیں استاذہ، یہ جو لیفٹ ہینڈ۔ ان کو کیا کہیں گے، اٹیچ یا ڈیٹیچ؟ پہلے تو یہ بتائیں نا، یہ دو کائنڈس پہلے بنانی ہے، ڈیٹیچ یا اٹیچ۔ تو یہ اٹیچ ہے یا ڈیٹیچڈ ہے؟ رائٹ ہینڈ والی ڈیٹیچڈ ہے۔ آپ ڈیٹیچ اور اٹیچ کا مطلب ہی نہیں پتا شاید آپ کو۔ متصل اور منفصل نام استاذہ، ہاں تو یوں جو یوں کہ، ڈیٹیچڈ ہوتی ہے اس کو منفصل، جی ہاں، منفصل کہتے ہیں۔ متصل کا مطلب کیا ہے کہ وہ اٹیچڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر جی یہ جی والی ہے تو یہ ڈیٹیچڈ ہے، تو یہ منفصل ہے۔ تو یہ متصل، ابھی آپ نے دو ہی نام بولنے ہیں، یہ مرفوع منفصل، اور یہ اس کو کیا کہیں گے؟ مجرور متصل۔ متصل، جی جی لیفٹ ہینڈ والی ہے نا، لیفٹ ہینڈ والی جی ضمیریں دو طرح کی ہوتی ہیں نا، ہوتی تو وہ جی منصوب استاذہ، ہے، لیکن اگر وہ اسم کے ساتھ آئیں تو پھر منصوب نہیں ہوتی، پھر وہ کیا ہوتی ہیں؟ مجرور متصل ہوتی ہیں۔ مجرور ہوتی تو جو بھی ضمیر حرف جر کے ساتھ آئے گی یا کسی نون کے ساتھ آئے گی وہ مجرور متصل کہلائے گی۔ اٹیچڈ ہوگی، اٹیچ ہے، یہ جڑی ہوئی ہے، اور یہ کیا ہے؟ مجرور متصل ہے۔ یہ منفصل ہے، یہ ڈیٹیچڈ ہے اور مرفوع منفصل ہے۔ اگلی ضمیر دیکھیں، اس میں بھی سیم ضمیر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اٹیچڈ ہے نا، اور اٹیچڈ، جی مجرور ہے کیونکہ پیچھے نون آ رہا ہے۔ جی استاذہ، جب پیچھے نون یا حرف جر آتا ہے تو وہ اٹیچڈ ہوتی ہے لیکن مجرور متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مجرور کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ بن رہی ہے۔ اور یہ والی کیا ہے؟ یہ منفصل ہے، اور یہ اس کو مرفوع منفصل کہتے ہیں۔ رائٹ ہینڈ والی ضمیریں مرفوع ہوتی ہیں، لیفٹ ہینڈ والی منصوب ہوتی ہیں۔ رائٹ ہینڈ والی ڈیٹیچڈ ہوتی ہے، لیفٹ ہینڈ والی اٹیچڈ ہوتی ہے، صحیح ہے؟ تو یہ اب آپ کو آسانی سے، اب تو اتنا کچھ آپ نے پڑھ لیا ماشاءاللہ، تو یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ کل مجھے بتانا یاد نہیں رہا کہ یہاں پہ ہم ضمائر پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں پھر ضمیر آ گئی نا۔ اب یہاں پر بھی ایک ضمیر ہے، یہ کون سی ہے؟ ابھی میں، مائی فادر، مجرور مجرور متصل۔ اچھا اب یہ کیا ہے؟ آپ ایک دفعہ دوبارہ آ جائیں شاہین، نکل کے نا دوبارہ آ جائیں۔ یہ جو کیا نام ہے، آواز تھوڑی کٹ رہی ہے آپ کی۔
जो बोल रही है ना अभी माइक पे, वो वाली शाइन। जी जी। अच्छा, आप दोबारा आ जाएं एक दफा, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। ये वाली क्या है, मुनफसिल है, ठीक है। ये वाली मुत्तसिल है। तो ये मजरूर मुत्तसिल है क्योंकि ये मुजाफ इलैह बन रही है, ठीक है। अबू मुजाफ है और या जी जमीर मुजाफ इलैह है, तो ये आपकी है। ये है आपकी मरफू मुनफसिल। अच्छा, यहाँ पे ये उम्मू का में जमीर बताइए मुझे जल्दी। जी उस्ताद। उम्मू का, ये हम्म। मुत्तसिल है, मजरूर हम्म। मुत्तसिल है। मजरूर मुत्तसिल है। और इसमें आगे और देखिए हिया। हिया मरफू मुत्तसिल है। मुत मरफू मुनफसिल। मुनफसिल है, मुनफसिल। मुनफसिल। मुनफसिल का मतलब है फासले पे है, ठीक है। और फासले पे जी। है ना, जुड़ी हुई तो नहीं है ना। और मुत्तसिल का मतलब होता है नहीं, अटैच्ड, जुड़ी हुई है। है। अच्छा, अभी जी में उस्ताद। देखें, अभी में। मजरूर मुत्तसिल। और हिया क्या है। मरफू मुनफसिल। बाकी लोग भी जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है ना। और ये जमीर नहीं है, ठीक है, ये जी जमीर नहीं है, इसको जमीर नहीं कहेंगे, ये एक ही वर्ड है। हुना का, हुना जी होता है और हुना का जी होता है। अच्छा, अब इसमें ये जमीर है अजहबता। जी। इस ये भी क्या आपको लगती है, अटैच है अंता या जमीर है ना। है। अंता जमीर है ना उस्ताद, सही है। जमीर का नाम बताएं। ये मुत्तसिल है उस्ताद। मुत्तसिल कौन मरफू सी मुत्तसिल। मरफू मुत्तसिल मरफू है। अंता। जी तो आपने देखा कि वो जो राइट हैंड पे जमीरें आती हैं, हुआ, हुमा, हुम, वो अटैच होके भी आ रही हैं और डिटैच होके भी जी आ रही हैं। और जो लेफ्ट हैंड की जी जमीरें हैं वो भी अटैच होके आ रही हैं, वो भी डिटैच होके आती हैं। सही है। तो दोनों तरह के जी जमायर अटैच भी आते हैं और डिटैच्ड भी आते हैं, तो आपने पहचानना है। अब ये मरफू मुत्तसिल है क्योंकि फाइल बन रही है, जी ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे जी। आइए तो जहबतु में ये भी मरफू मुत्तसिल है। मुत्तसिल है, फेल से जुड़ी हुई है, अटैच्ड है और मरफू है क्योंकि जी फाइल बन रही है ही मरफू मुत्तसिल में। जी वो छोटी वाली जमीरों में से नहीं है, मोटी वाली जमीरों, राइट हैंड वाली जमीरों में से। जी अबू हु जी में देखें। जी। ये मुत्तसिल ही है उस्ताद, सही। हाँ, मुत्तसिल ही है, अबू कौन हु। सी मुत्तसिल। पोजीशन, हाँ, इसका स्टेटस क्या है, मुत्तसिल तो है। इसका स्टेटस है मरफू। जी। नहीं, मंसूब है उस्ताद, सही। मैम ये मजरूर है, मुजाफ इलैह। ये मंसूब है। जी। मजरूर है, मुजाफिर बन रही है, उसका स्टेटस देखा करें वहां पे, वो क्या, किस हैसियत से जी आ रही जी है, उसका स्टेटस क्या है। जी जी तो वहां वो मुजाफिर बन रही है ना, तो वो मजरूर मुत्तसिल होगी, जी उस्ताद। ठीक है। वो आपको जमीर को पहचानना है तो आप देखें वो किस जगह पे आ रही है, फाइल की जगह पे आ रही है, ठीक है। मुजाफिर की जगह पे है जी। तो फिर मंसूब तो नहीं हो सकती ना। अगर नहीं, मुजाफिर की मजरूर हो। जगह पे आ रही है तो मजरूर होगी ना। और यहां पर ये जी उस्ताद। जमीलू का किस जगह पे आ रही है। ये भी ये भी मजरूर हो रही है उस्ताद साहब। हाँ, मुजाफिर की जगह पे आ रही है। पहले देखा जी करें वो उसके पीछे क्या है और वो किस जगह पे आ रही है, ठीक जी। है। फिर उसका आप उसका मुझे बता दें उसका क्या स्टेटस है। अच्छा, अबू हूं में हु जमीर जो है वो किस जगह पे आ रही है, मफूल अबू की जगह हु। पे आ रही है, फाइल की जी। जगह पे आ रही है, मजरूर की जगह पे आ रही है, मुजाफिल की जगह पे आ रही है। बताएं चारों में से क्या है ये। ये ये बिस मजरूर हो। मजरूर मुत्तसिल है क्योंकि मुजाफिल की हाँ, जगह पे आ रही है। अब और ये इस वाली मौके पे जमीर, इजाफी है। हाँ, ये वाली जमीर बताएं, हुआ। मरफू है उस्ताद साहब, मरफू मुत्तसिल। मुत्तसिल तो मुनफसिल है। नहीं। मुनफसिल, नहीं, डिटैच। मुनफसिल है। हाँ, पहले डिटैच। मुनफसिल और मुत्तसिल को अपने पास तयन कर लेना कि मुनफसिल क्या होता है, मुत्तसिल क्या होता है। मुनफसिल है। फासले पे होगी, मुनफसिल। फासले पे ठीक। होगी तो वो क्या होगी, मुनफसिल होगी। अटैच होगी, अब ये अटैच है, ये फासले पे नहीं है, दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं, अबू हु। तो ये मुत्तसिल जी है अबू के साथ। तो इसको क्या कहेंगे, क्योंकि मुजाफिल बन रही है तो मुजाफिल इज ऑलवेज मजरूर, ठीक है। जी ये मजरूर जी जमीर है, इसके पेश पे ना जाएं,
اس کے پیش بھی نہیں جانا، یہ مجرور متصل ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہی ہے. ایسے تو اس کے اوپر بھی زبر آ رہی ہے، پھر آپ اس کو مرفوع منفصل کیوں کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ تو ان کی ضمیر جو ہوتی ہے مبنی ہوتی ہے، اس کی حرکت پہ نہیں جاتے. ٹھیک ہے، اس کی جگہ دیکھتے ہیں وہ کس جگہ پہ آ رہی ہے. یہ مبتدا کی جگہ پہ آ رہی ہے اور یہ ڈیٹیچڈ ہے، تو یہ مرفوع منفصل ہوگی. اگر فعل کے بعد آ رہی ہے تو پھر مرفوع متصل ہوگی. یہ مرفوع متصل ہے کیونکہ یہ فاعل بن رہی ہے. فاعل جو ہوتا ہے ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مرفوع متصل ہے. تو اس سبق میں آپ کو ضمیریں ہی پڑھائی جا رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد ابو ہو گیا، ہوا ہو گیا. اس میں مجھے بتائیں یہ ضمیر یہ کس جگہ پہ آ رہی ہے؟ یہ آپ کیسے دیکھیں گے کس جگہ پہ آ رہی ہے؟ وہ اس کے پیچھے والے سے دیکھیں گے، اس کے پچھلے لیٹر سے، پچھلے لفظ سے. تو یہ آپ کس جگہ پہ آ رہی ہے، کس کے بعد آ رہی ہے اور کیا بن رہی ہے؟ اٹیچ. پہلے تو یہ سوچے اٹیچ ہے یا ڈیٹیچڈ ہے؟ مس اٹیچ. اٹیچڈ ہے. ٹھیک ہے نا، انگلش میں نہیں آتا تو اردو میں، مضاف اردو میں الیہ یہ مضاف کی الیہ جگہ کب، آ رہی ہے. مضاف الیہ کب بن رہی ہے؟ لام جو ہے یہ مضاف ہے، حرف حرف، جر ہے. نہیں ہاں نہیں، حرف جر ہے. تو پھر کیا ہے؟ ایسے مجرور. مجرور. مد مجرور اور متصل. جی متصل. مضاف الیہ بھی مجرور متصل ضمیر ہوتی ہے، اور حرف جر کے بعد آئے تب بھی مجرور متصل ہوتی ہے. اچھا مس، آپ لیکچر میں شاید مجھے یاد آ رہا ہے سر نے بتایا تھا کہ نا لام کے اوپر جب زبر آئے تو وہ فعل سے پہلے لگتا ہے. اس کو چھوڑ دینا، ابھی تو فعل سے پہلے نہیں لگ رہا نا، جی چلے. اس کو جی چھوڑ دیں. اس لیے میں کہتی ہوں ہر جگہ نہ جایا کریں، جو ضروری ہے نا اسی کو اپنا ابھی ہم نے جتنا پڑھا ہے اسی کو ہم کنسیڈر کریں گے. لام ہم نے جارا پڑھا ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ لی ہوتا ہے. جب یہ ضمیر کے اوپر آتا ہے تو یہ لا ہو جاتا ہے. تو یہ والا دیکھنا ہے نا، ضمیر پہ آ رہا ہے، فعل کا تو تعلق ہی نہیں ہے یہاں پہ، ضمیر پہ داخل ہو رہا ہے لام. لی ہوتا ہے، میننگ بھی لیے ہی ہوتا ہے، لیکن جب ضمیر سے اب یہ لی کا پڑھتے تو کیسا لگتا ہمیں بتائیں، پڑھنے میں ہی نہیں آتا. جی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ لا کر لا. دیا. لیکن ایک ضمیر کے اوپر آپ کو وہ لی نظر آئے گا، یہ والا وہ یا متکلم کی ضمیر ہوگی نا. جائے متکلم کی ضمیر پہ آپ کو لی نظر آئے گا. تو جی ایکسیپشن ہر جگہ آئیں گے آپ کو نظر. ضمیر کس 14 ضمائر ہے، 13 ضمائر کے پیچھے لا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہ صرف لام کی بات ہو رہی ہے، لی کی بات ہو رہی ہے، اور کسی حرف جر کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، تو جی یہ جب یا سے پہلے آئے گا تو یہ لی، کیونکہ اس کو اگر ہم زبر سے پڑھتے اپنا رول یوز کرتے تو یہ لئی ہو جاتا، کہ ضمیر سے جی پہلے جو ہے لی لا ہو جاتا ہے. غلط. تو ہمیشہ سچویشن کو دیکھ کے کام کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہے آپ کا؟ یہاں پہ لی ہے، اس میں بھی یہ مجرور متصل ہے. جی. اسمہ ہو میں کیا ہے؟ مجرور متصل. ہاں مجرور متصل ہے کیونکہ مضاف الیہ بن رہی ہے. یہاں پہ مجرور متصل کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے حرف جر حرف آ رہا ہے. جر کی وجہ سے. یہاں بھی مجرور متصل ہے. صحیح ہے. تو یہ ضمائر ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں، اور اگلا جو سبق آئے گا 11 جو نہیں ہم پڑھیں گے، بک شروع کریں گے، اس میں بھی ضمائر ہی غائب ہوگی. اس میں چھوٹے چھوٹے آپ کو مضمون لکھنے سکھائے جائیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں لی، اب یہ کون سی ضمیر ہے؟ یا متکلم کی ضمیر ہے اور مجرور متصل ہے. مجرور ہے کیونکہ پھر اس کی پوزیشن مجرور ہے اس وقت، جی. کیونکہ وہ حرف جر کے بعد آ رہی ہے. اسمہا مجرور مس متصل. مضاف الیہ کی ہے. ہاں مجرور متصل. جی. مجرور متصل ہے. یہ کیا ہے؟ مرفوع یہ مرفوع وہی منفصل. یا وہی. مرفوع منفصل. ہاں. واو کو چھوڑ دیں، ہیا ضمیر ہے، واو کو چھوڑ دیں، وہ نہیں ہے ساتھ. یا متکلم کی ضمیر. یا متکلم کی ضمیر کہاں سے ہے یہ؟ بس ہیا ہے نا یہ. تو ہیا اوپر نہیں پڑھا، یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے نا، شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. ہیا کیا تھی؟ یہ ہیا، یہ کیا ہے؟ کون سی ضمیر تھی؟ ہم نے پڑھی ہے نا ہیا. جی مس، یہ مونس کی ہے. مونس کی ہے. کون سی والی ہے؟ نام کیا دیں گے؟ مجرور متصل.
मजरूर क्या नहीं बन है। रही है यहाँ पे, क्या बन रही है? मजरूर मुतसिल होती है, पीछे हरफ जर आए तो मजरूर होती है नहीं पीछे। नहीं उस्ताद, सॉरी सॉरी, नहीं उस्ताद, ये जैसे मरफू मंसूब है। मुनफसिल है। ये मैं मरफू क्यों देर लगा मुनफसिल है। रही हूँ, मैं आपका ये पक्का करना चाह रही हूँ कॉन्सेप्ट आज। जी जी ये जी दो जी वर्ड नहीं है, ये एक ही वर्ड है, हुआ हिया। जी ये ये जी जी हुआ और हिया है, ये मुजक्कर के लिए ये होती है, डिटैच है। ये डिटैच है वैसे। मरफू मुनफसिल। जी मरफू मुनफसिल। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं तो हमने पढ़ा है इस्मुहा। तो ये मजरूर मुतसिल है क्योंकि पीछे नौन आ रहा है। जी ये भी मजरूर मुतसिल है, पीछे हरफ जर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद जौजी हा में देखें, जमीर को देखें सिर्फ। ज़मीर मुत्तसिल मजरूर। मजरूर, ठीक है, मुजाफ इलैह बन रही है इसलिए मजरूर मुतसिल होती है, और ये वाली भी मजरूर मुतसिल। ये क्या है? इंदा का। ये भी ज़र्फ है ना उस्ताद साहब, मजरूर मुत्तसिल है। मजरूर मुतसिल है। अखी में क्या है? ये याय मुतकल्लिम है, मज- इसको याय जी मुतकल्लिम कहते हैं। जी ये जो या होती है ना, इसको याय मुतकल्लिम कहते हैं, ही या को तो नहीं कहते याय मुतकल्लिम। नहीं नहीं। ये याय मुतकल्लिम है। ठीक है, अब इसके पीछे आप देखें, इसम आ रहा है तो मजरूर मुतसिल, हरफ आ रहा है जर तो भी मजरूर मुतसिल। मजरूर। जी अकेली आती ही नहीं है ये वाली, अकेली ये घूमती है मजे से। हुआ ही या, ये वाली जो है ना, अंता जी जी अंतुमा अंतुम, ये राइट हैंड वाली जमीरें, ये मुनफसिल होती हैं, ये जुड़ के नहीं आती हैं, ये हमेशा अकेले आती हैं, मुब्तदा बनती हैं। ठीक है, ये वाली हमेशा जो लेफ्ट हैंड पे जमीरें हैं, का कुमा कुम, ये वाली अटैच होके आती हैं। कभी इनके पीछे हरफ जर आ जाता है, कभी इनके पीछे इसम आ जाता है, कभी कभी इनके पीछे फेल भी आ जाता है। जब फेल आता है तो फिर ये क्या होती है, उस वक्त मंसूब मुतसिल होती है। मंसूब मुतसिल क्यों होती है जब फेल आता है तब? मफूल बन रही होती है ये। क्योंकि मफूल बन रही होती है फेल का। मंसूब जमीर जी फाइल नहीं बनती, फाइल ये वाली बनती है, कभी छुपी होती है, कभी जाहिर होती है, कभी, है ना। तो अब ये थोड़ा सा कॉन्टेस्ट इसको क्लियर करें, फिर एक्सरसाइजेस भी करनी है। हिंदी में भी ये मजरूर मुतसिल है क्योंकि जर्फ के बाद जो आती है वो मजरूर मुतसिल ही होती है ना। क्योंकि ये मुजाफ जी मुजाफ इलैह बन रहा है ना, तो ये मुजाफ इलैह बन रही है तो मजरूर मुतसिल है। फिर इसमें भी ऐसे ही है, फिर इसमें भी आपकी ये मजरूर मुतसिल है क्योंकि जर्फ के बाद आ रही है। जर्फ के बाद जो भी जमीर आएगी मजरूर मुतसिल होगी। अच्छा, फिर हमने ये वाला किया था, इसमें माँ इस्मू का, आपका नाम क्या है? तो आप जवाब क्या देंगे? इस्मी। इस्मी मेरा नाम। अब इस्मी में जो जमीर लगी है कौन सी जमीर है? इसमें ये मजरूर मुत्तसिल है उस्ताद और साहब। इस्मू का में जो लगी हुई थी वो क्या थी? इसमों का ये है मजरूर। मजरूर मजरूर मुतसिल। मुत्तसिल। पीछे पीछे देखा मजरूर। करें, नाउन आ रहा है या फिर जार आ रहा है तो मजरूर मुंह से निकलना चाहिए। पीछे जी नाउन, अब ये तो पता है ना कि ये नाउन है, लोगातुन भी नाउन है, जी। उम्मन भी नाउन है, उख्तुन भी नाउन। नाउन है। तो नाउन पीछे आ रहा है तो आगे जमीर आ रही है तो मुंह से मजरूर निकलना चाहिए, और मुत्तसिल क्योंकि अकेले तो आती नहीं, अटैच होके आती है ये। जी जी। ली में कौन सी जमीर है? या है मुतकल्लिम के। मजरूर मजरूर मुत्तसिल। मुत्तसिल। हाँ, हरफे मजरूर हरफे मुत्तसिल। जर आ रहा है ना तो मजरूर जी। मुत्तसिल। वो अपने दिमाग में आपने सोचना है, या मुतकल्लिम है जो भी है, ठीक है, वो अपने दिमाग में सोचना है। मुझे जी जवाब चाहिए कि मजरूर है या मंसूब है। तो मंसूब तो नहीं जी हो सकती, पीछे हरफ जार आ रहा है तो मजरूर ही है, और अटैच भी है। ये वाली कौन सी होगी? मजरूर मुत्तसिल। मजरूर मजरूर मुत्तसिल। मुत्तसिल क्योंकि हरफ जार आ रही है। इंदा काम है, मजरूर मुत्तसिल। हिंदी मुत्तसिल। में मजरूर मजरूर मुत्तसिल। मजरूर मुत्तसिल। मजरूर। इंदा काम है मजरूर मुत्तसिल। पीछे इसम आ रहा है ना, इंदा इसम होता है, जी पीछे इसम आए या जार आए तो मजरूर मुत्तसिल। अगर इसी के पीछे मैं फेल लगा दूं तो ये मंसूब मुत्तसिल हो जाएगी। अगर जी पीछे मैं फेल लगा दूं तो उसमें फिर क्या जी होगा ये। अच्छा, उसके बाद आप आए तो अबू का में
इस मजरूर मुत्तसिल। इंदा तो मजरूर एडवर्ब मुत्तसिल। नहीं होता। तो वो भी तो मजरूर मुजाफ ही बन के आते हैं ना मेरी जान। एडवर्ब होता है, ज़र्फ होता है, तो वो भी तो हमेशा मुजाफ ही बन के आते हैं ना। आगे जमीर जी होती है, मुजाफ इलैह बन रही होती है। जी। ये भी तो ज़हन में रखे ना। इसको आप हरफ जर की तरह कहें समझेंगी नहीं। हरफ जर मैंने कल लिखवाए थे 11, वही होते हैं, बाकी जर्फ होते हैं सारे। और जर्फ जो होते हैं वो इस्म होते हैं, इस्म। और इस्म मुजाफ बन के आता है, उसके ऊपर अलिफ लाम भी नहीं है, तनवीन भी नहीं है। वो मुजाफ बन रहा है और ये मुजाफ इलैह बन रही है। जर्फ हमेशा क्या बन के आते हैं? मुजाफ। मुजाफ। हाँ, मुदाफ बनते हैं, आगे मुदाफ इलैह। आगे क्या है? अबू का में ये जमीर बताएं। मुत्तसिल है उस्ताजा। हाँ, बस सिर्फ मुत्तसिल। मजरूर मुत्तसिल। मुत्तसिल तो मंसूब भी होती है ना। जी जी, मजरूर मुत्तसिल। मजरूर। मुत्तसिल मंसूब भी होती है, मफूल बनती है ना जब फेल के साथ जोड़ के, जी जी मुत्तसिल। तो जी दोनों नाम जी। लिया करें, मरफू मुत्तसिल या मजरूर मुत्तसिल या मंसूब मुत्तसिल। तो ये आप देखें, यहाँ पे हो गया मिन आईना में तो कुछ भी नहीं है। मा लोगा तू हो, ये वाली जमीर क्या बन रही है? अटैच्ड है उस्ताजा ये। हाँ। मान लो मजरूर मुत्तसिल। मजरूर मुत्तसिल। अब ये फेल तो नहीं है ना? आपको लग रहा है ये नहीं, फेल है? इसमें तो इसम है इस इसमें मिस। तो हाँ, तो ये मजरूर मुजाफ इलैह बनेगी, तो मजरूर मुत्तसिल होगी। उम्मुहु में ये इसम ही है, तो ये मुजाफ इलैह बनेगी, ठीक है। मजरूर जी। मुदाफिल मुत्तसिल। है की वजह से मजरूर मुत्तसिल। ये भी ऐसे ही है, ठीक है। बस ये सब और मजरूर मुत्तसिल। हाँ, ये सारी मजरूर हा भी जौजू, हा जौज क्या है? जी। होता है, इसम होता है। इसम। तो अगर पीछे इसम लगा हुआ है तो मजरूर मुत्तसिल, हरफ जर लगा हुआ है तो लेकिन ये कौन सी जमीरें होंगी? ये लेफ्ट हैंड वाली जमीरें होंगी, यही मजरूर बनती हैं। राइट हैंड वाली में जो हुआ मोटी वाली जमीरें होती हैं वो कभी मजरूर नहीं होती। वो वो कभी मरफू मजरूर नहीं होती, वो इसी तरह अलग से आती हैं, डिटैच होके या फेल के साथ जोड़ के उसका मरफू मुत्तसिल होके फाइल बनती हैं। जैसे आपने अभी जहाबतू देखा था। आप देखें इसको आप जहाबतू की जमीर को क्या कहेंगे? जहाबतू। अंत है। मरफू। मरफू मिस मुझे मरफू मुझे मुत्तसिल। हाँ, मरफू मुत्तसिल, क्योंकि पीछे फेल आ रहा है। जी। जी। तो मरफू मुत्तसिल जमीर है, ये अंता है, राइट हैंड वाली है। उसकी टेल नजर आ रही है, पूरी अंता तो नहीं लगा सकती थी, लफ्ज बहुत बड़ा हो जाता है। तो जहाबता, जी। जहाबतू, जहाबती है ना। और जहाबत, अना। जहाबत। अना है ना। हाँ, उसको छोड़ दें। मिस। उसको छोड़ जी दें, जी। कौन क्या है, बस मुझे ये बताएं कि जमीर मजरूर है, मरफू है, मंसूब है। ये सारी काइंड, जमीर की कितनी मिस अगर काइंड? इसी के आगे अगर हम लगा देते हम जहाँ तो हम हम्म। तो जो अब जमीन आती तो मफूल होती ना। मफूल हाँ, होती तो मंसूब होती है, मंसूब मुत्तसिल ऐसा ही वो है ना। बिल्कुल ऐसे है, वो लेफ्ट हैंड वाली जमीर है, आगे वाली। जो जमीर आपको क्लियरली उसकी दुम नजर नहीं आती, पूरी नजर आती है, वो जमीर लेफ्ट हैंड वाली होती मरफू है। होती है जी। मंसूब मुतसिल होती है। जी जी मंसूब। मंसूब जो नजर क्योंकि आती है वो मंसूब। और जो आपकी टेल नजर आ रही होती है, तू नजर आ रही है, वो आपकी क्या है? या ता या ती नजर आ रही है, वो आपकी मरफू। फाइल, मरफू मुतसिल। तो ये मुतसिल है क्योंकि अटैच है फेल के साथ। सही है। अभी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे जी। ना, कुरान में जब भी जमीर को देखें आप फाइंड आउट करेंगे ये जमीर कौन सी है। तो जमीर कौन कौन सी होती है? मरफू मुनफसिल होती है। मुनफसिल, अपने जेन में लाए, मरफू मुनफसिल जमीर। राइट हैंड वाला पूरा चार्ट, हुआ, हुमा, हुम, हिया, राइट हैंड पे जो हुआ पूरा हुमा चार्ट है, हुमारा। या पूरा हुमा। चार्ट, हाँ, वो मरफू मुनफसिल जमीरें हैं। फिर मरफू मुतसिल कौन सी जी। होंगी? मुतसिल कौन सी होंगी? वही जब हु। फेल के साथ जुड़ हाँ। जाए। हुमा। हम। हाँ, जी। वो तो मरफू जो मुनफसिल है ना। गर्दान गर्दान में होती है मैम, जो गर्दान में। हाँ, मरफू मुतसिल वो होती हैं जो फेल के साथ जोड़ के आती हैं, फाइल बन रही होती है। जहाबा, जहाबा, जहाबू, हाँ। जहाबत, जहाबता। अंता। अंता वाली। अंता जब फेल के साथ लगी होगी, सिर्फ ता होगी। जी जी। आप अंता ना बोले, अंता तो मरफू मुनफसिल है, ता ये मंसूब जिसका ता मुतसिल। नजर आ रहा होता है। जी। हाँ, सिर्फ अंता होता है। दुम नजर आ रही। तो ये दो तरह की जमीरें हो गई, ये दोनों राइट हैंड वाली जमीरें हैं।
ये इसी तरह यूज होती है, ये मजरूर नहीं यूज होती। राइट हैंड की जमीरों को ज़हन में लाए, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम, ये सारी जमीरें जो है मरफू मुनफसिल है। ये अकेले आए तो मुब्तदा बनती हैं, साथ जोड़ के आए तो फाइल बनती हैं। किसके साथ जोड़ के आए? फेल के साथ। फेल के साथ। फेल के साथ अगर जुड़ के आए तो ये वाली जमीरें क्या हरफ जर और इसम के साथ जोड़ के आ सकती हैं? ये वाली जमीरें राइट हैंड वाली? नो मैम। नहीं नहीं। नो नहीं, मैम। उल्टे हाथ वाली जमीरें जो हैं वो इसम के साथ भी आती हैं, मुजाफिला बनती हैं, हरफ जर के साथ आके मजरूर बनती हैं। दोनों सूरतों में मजरूर ही होती हैं, चाहे हरफ जर के साथ आ रही है, हरफ जर 11 है, उन सब के साथ आएंगी वो। और इसम कोई भी हो सकता है, कलम कलम भी हो सकता है, किताब भी हो सकता है, लुगत भी हो सकती है, जौज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड की जमीरें जो होती है वो आपकी मंसूब जमीरें होती हैं वो मंसूब बेसिकली व तो। मजरूर ना। हाँ, मंसूब भी होती हैं और मजरूर भी होती हैं। अब मंसूब कब होती हैं और मजरूर कब होती हैं? मंसूब जब कब इसम मिस के होती? जब साथ आए। मजरूर तब होंगी जब पीछे इसम होगा। नहीं। और नहीं, फेल होगा, फेल फेल। होगा। मजरूर, मजरूर बता रही हूँ मिस। मजरूर बताएं। इसम होगा या मजरूर तब फिर, होगी जब इसम होगा, या या फिर जब हरफ जर होगा, फिर हरफ जार होगा। हरफ जर होगा तब वो मजरूर होंगी। जी। ये वाली कभी हमने मजरूर, नहीं क्यों बोला। ये वाली कभी जो है मजरूर नहीं बनती, ये जमीरें कभी मजरूर नहीं बनती। जी। ठीक है ना, ये कभी मजरूर नहीं होती, हुआ हुमा हम मिस इनका राइट तो हैंड। नाम ही मरफू है ना, तो ये मजरूर क्यों बनेंगी। मरफू है, लेकिन ये मंसूब है ना, लेकिन ये तो मजरूर भी बन जाती है। ये जमीरें तो मंसूब है, लेकिन जब हरफ जार और इसम के साथ आती है तो ये मजरूर मुतसिल कहलाती है। मंसूब कब होती है? जब जब फेल के पीछे, साथ जब आती है ना। हाँ फेल जी। के इन साथ। लॉ के साथ आती है मैम। इन्ना के साथ और आएगी। फेल के। इन्ना व अखवातु वा के साथ आएंगी, है ना, रुफे मुशब्बह बिल फेल। तो उसके बाद ये मंसूब होंगी। इन्ना हो, अन्ना हो, लकिन्ना हो। आगे आप देखेंगे ये वाली जमीरें आएंगी, अटैच होके आएंगी और ये मंसूब कहलाएंगी, मंसूब मुत्तसिल कहलाएंगी। इन्ना प्लस हु, इन्ना हु हो जाती है ना, इन्ना हुम, इन्ना का, इन्ना की, है ना, पूरी गर्दान जी। बन जाती है। तो उस वक्त ये मंसूब मुतसिल होती है, मजरूर मुतसिल नहीं होती। और कब होती है? नंबर एक तो ये हो गया, नंबर दो क्या हो गया? और फेल के फेल साथ के साथ मफऊल जब आती है। बनती है। हाँ, फेल के साथ मफूल बनती है, मफूल बनती है। अच्छा, क्या ये जमीरें अकेली भी आती हैं, मंसूब जमीरें? हु, हा। नहीं, नहीं, अटैच्ड होके ही आती है। अटैच ही ये होती हैं। नहीं आती हैं। मैम इया। इजा कुरान का में जैसे सिर्फ मैंने आपने एक बताया था, जगह आती इजा है का, या के साथ, हाँ बाकी नहीं आती। हाँ, इजा हु भी आया कुरान में ना। इया हम भी आया है, इया हु भी आया है, सब कुछ आया है। ये इया के साथ भी पूरी गर्दान बनती है। इया हु, आप अपनी बुक में देखें, लिसान कुरान में इंशाल्लाह ज़बायर का चैप्टर हम जब पढ़ेंगे ना, तो मेरे ख्याल में पढ़ा दिया मैंने। इया हु और इया हुमा और इया हुम और इया हा, इया हुमा, ये सारी जमीरें जो है ना, हु हुमा हुम, ये या सारी हुन्ना। जमीरें, हाँ, ईया हुन्ना, ये सारी आपकी ईया के साथ आती हैं। जब इनको अकेले लाना होता है तो ये बेचारी छोटी छोटी होती हैं, तो अकेले लानी है तो अब क्या करें, थोड़ा इनको विजिबल तो करना है ना, नजर आए जरा ये, वरना तो वो छोटी सी जमीर है, वो गुम ही जाएगी, कुरान में नजर ही नहीं आएगी, हमजा की तरह। तो उसको विजिबल करना है, याहूल करते हैं फिर उसको। तो ये मंसूबी जमीर है, इसको आप मजरूर नहीं कहेंगे। ये मंसूब है, और कौन सी मंसूब है बताएं? मुत्तसिल है या? तब इसको नहीं, मुनफसिल बोलेंगे ना, क्योंकि ये मुनफसिल अटैच है। नहीं है, मंसूब मुनफसिल हाँ, कहेंगे। मुनफसिल कहेंगे, क्योंकि ये अकेले लाए हैं। का जमीर को जब अकेले लाना होता है तो अकेले ऐसे तो नहीं ला सकते, ईया लगा। अच्छा, वैसे इया के कोई मायने नहीं होते, ऐसे ही लगा देते हैं। ईया के मानी होते हैं, जमीर को भी सिर्फ शुरू, जमीर को भी शुरू में लाए हैं, उसके भी मानी है और ईया के भी मानी है। सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, ईया का मतलब है सिर्फ, और तेरी, जगह पे। और बीच में ही कहां से आ गया? क्योंकि मफूल पहले आ गया है। ये असल में था नाबुदू का, नाबुदू, नहनु जमीर फाइल है, नाबुदू
का। का। अब अल्लाह ताला ने क्या कहा, इसमें तो क्या तर्जुमा, हम इबादत करते हैं तेरी, और अगर हमने कहना है सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं, तो फिर हम क्या कहेंगे, इस का को उठाएंगे और इसको शुरू में ले जाएंगे। और अकेले तो नहीं लिख सकते ना, का ना बुदू, कितना बुरा लगता है ना। जी जी। का को उठाया, इय्याक नाबुद। मफूल को शुरू में ले आए, जैसे खबर को उठा के शुरू में ले आते हैं ना, तो जी। इसी जी तरह मुकद्दम बनाए। मफूल को हाँ मुकद्दम करते हैं। अब इसके साथ या लगाएंगे, या का नाबुदु, नस्ताइनु का था, नस्ताइनु का था, ठीक है। अब जब अल्लाह ताला ने इसमें जोर पैदा करना चाहा तो का जमीर को उठा के या का नस्ताइनु, आपने देखा नस्ताइनु पे पेश आती, कभी आपने गौर किया है? ये जी, बहुत जब बड़ा आए सवाल। कभी खत्म भी, हो जाती है। कभी भी नून पे आपने पेश नहीं देखा होगा, नस्ताइनु पे पेश आता है, क्यों आता है, कभी आपने गौर किया? बस सूरतुल फातिहा भी अभी तक हमें अबूर नहीं हुआ। नस्ताइनु का था ना, मुजारे के आखिर में पेश आती है, नून पे पेश पेश आती है। आगे का था ना, तो जब का को हटा लिया तो नून बड़ा हो गया ना, नस्ताइन बन गया, और का जमीर व इय्या का नस्ताइन, है ना। हमेशा आप देखेंगे नून पे जबर आती है, जमा की अलामत होती है, या जी लेकिन यहां पर नून के ऊपर पेश आ रही है क्योंकि ये मुजारे की अलामत है, मुजारे के आखिर में नून आता है। जी, नस्ताइनु, जब और उसको पेश रोकते, आता है। हाँ जब उसको रोकते हैं तो नस्ताइन पढ़ देते हैं, और कभी हमने नहीं सोचा कि उसके ऊपर पेश लगी है, जबर नहीं लगी हुई, कभी नहीं सोचा हमने कि यहाँ पेश क्यों आ रही है, हर तो नून पे जबर आ रही होती है, यहाँ पेश क्यों आ रही है। उसकी वजह यही है कि ये मुजारे का आखिरी हरफ है, और का जमीर आगे से हमने, जैसे नाबुदू में भी तो पेश ही आ रहा था ना, जी, नाबुदू जी में जी। क्या था, लास्ट में पेश आ रहा था, वो भी मुजारे है। हाँ वो भी मुजारे है, तो नस्ताइनु भी मुजारे है। अब का जो था मफूल की जमीर थी, उसको हमने उठाया शुरू में ले गए, और उसको अब हम क्या कहेंगे, जमीर मंसूब मुनफसिल, जो जी, शुरू में ले गए ना, कहा यहाँ से जमीर उठा के, वो यहाँ भी यहाँ मुत्तसिल थी और वहां मुनफसिल हो गई है। अगर ये दो मिसालें आप याद रख लेना, आपको सारे मसले हल हो जाएंगे। नस्ताइनु का, जब का जमीर नस्ताइनु के साथ लगी हुई थी, नाबुदू के साथ लगी हुई थी, वो मुत्तसिल थी, मंसूब मुत्तसिल थी, वो फेल के साथ अटैच थी। जब हम उसको शुरू में लेके गए तो वो मंसूब मुनफसिल हो गई, अकेली हो गई ना, मुनफसिल हो गई ना, जी, तो उसके साथ फिर जाके गुम न जाए, या बुरा पढ़ेंगे कैसे का को, का नाबुदू, कितना बुरा लगता। अल्लाह ताला ने उसको खूबसूरत जी बनाया, उसको बड़ा बनाया, विजिबल किया, इय्याका नाबुदु, तो मफूल मुकद्दम हो गया है। हर चीज मुकद्दम क्यों होती है, जोर पैदा करने के लिए। अब इस जमीर को आप मंसूब मुत्तसिल नहीं कहेंगे, मंसूब मुत्तसिल ये मुफस्सिल। पहले थी जब ये नस्ताइनू के साथ जुड़ी हुई थी, नाबूदू का के साथ जुड़ी हुई थी, तब ये मंसूब मुत्तसिल थी, क्योंकि पीछे फेल आ रहा था, उसका ये मफूल बन रही थी। अब ये डिटैच्ड हो गई है, उठा के हमने अकेले यहाँ पे लाइए शुरू में। अब इसके साथ ईया लगाए, ईया लगाने से वो मुत्तसिल नहीं हो गई, वो मुनफसिल ही है, मंसूब मुनफसिल जमीर है ये, ठीक है। तो 5 तरह की जमीरें हैं टोटल, ये दो ऊपर हो गई, दो ऊपर हो गई, ये मरफू मुनफसिल, हुआ हुमा हुम हिया हुमा अंता अंतुमा पूरा गर्दान, और फिर ये फेल के साथ गर्दान में जब जुड़ती है तो ये मरफू मुतसिल, क्योंकि फाइल बनती है, और मजरूर मुतसिल होके आती नहीं है, ये जान छूटी। दो दो टाइप्स हो गई मरफू जमायर की। मंसूब जमायर की 3 टाइप्स हैं, ठीक है। 3 टाइप्स कौन सी हैं, एक तो यही वाली ईया वाली हो गई ना, मंसूब मुनफसिल, जैसे ये मरफू मुनफसिल थी ना, तो इसी तरह जी, मंसूब जमायर की भी ईया वाली जो है ये मंसूब मुनफसिल है, और बाकी जो फेल के साथ आएगी तो मंसूब मुत्तसिल कहलाएगी, और इसम और हरफ जर के साथ आएंगी तो मजरूर मुत्तसिल। तो ये वाली जो 3 हो गई। जी, जो लेफ्ट वाली जमीर है, इनकी 3 टाइप्स हो गई, मंसूब मुनफसिल, लेफ्ट हैंड वाली मंसूब जमीरें है ना, तो उनकी 3 जी, टाइप्स हो जी गई, मंसूब मुनफसिल, मुनफसिल, वो ईया का मंसूब। की मिसाल याद रखें, ठीक है।
جی اس کو اب اٹیچ ضمیر کوئی نہیں کہے گا کہ یہ ایا کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوئی ہے، یہ ایک ہی ورڈ ہے. اٹیچ تب جی ہوگی جب پیچھے فعل ہوگا یا اسم ہوگا یا حرف جر ہوگا. اس کے ساتھ ایا لگا ہوا ہے، یہ اٹیچ نہیں ہے، یہ ایک ہی ورڈ ہے. جیسے ہنا کا ایک ہی ورڈ تھا، تو ایا کا ایک ہی ورڈ ہے، کسی کے ساتھ، یہ مفرد ہے کلمہ اور یہ مفعول بن رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں منصوب منفصل ضمیر. تو دوسری چیز کیا ہے؟ منصوب متصل ہو گئی. متصل میں کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ فعل کے ساتھ آئے تو وہ فیل کے منصوب، ساتھ آتی فعل کے ساتھ ہی، فعل کے ساتھ آتی ہے اور کیا بنتی ہے؟ مفعول بنتی ہے. مفعول مفعول بنتی ہے. اسی طرح انا کے ساتھ آتی ہے تو بھی منصوب متصل ہی ہوتی ہے. ہاں منصوب بس وہ متصل انا فعل کا. پلس انا کی فیملی جو ہے نا اس کے ساتھ، جی انا کے ساتھ بھی جو ضمیریں آئیں گی تو یہ منصوب متصل ہی کہلائیں گے. ٹھیک ہے. بس انا کا فائل بنتی ہے نا. انا کا فائل کب ہوتا ہے؟ انا کا ہاں اسم، انا کا ان اسم کا ہوتا اسم ہوتا ہے. انا کا اسم ہوتا ہے. ہے. کبھی کبھی آپ لوگ اتنی سلی بات کرتے ہیں نا، فعل جی کا فائل ہوتا ہے میری جان. ٹھیک ہے. اب آپ کا کیا ہو گیا؟ یہ دوسری ٹائپ ہو گئی. تیسری ٹائپ کیا ہوگی؟ مجرور متصل. مجرور متصل. اب جب بھی آپ نے ضمیر کو دیکھنا ہے، مرفوع ہو یا منصوب ہو، تو یہ 5 ٹائپ میں سے آپ نے نام بتانا ہے مجھے. مجرور متصل کب آتی ہے؟ حرف جر کے ساتھ، یا اسم کے ساتھ. حرف جر یا مضاف. اب اس کے بعد میں اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کروں گی. اور پہلی بک میں دیکھیں، اب جو لوگ بالکل ہے نا، جو صرف کتاب پڑھ رہے ہیں اور ان کو گرامر سے کوئی ابھی، وہ یہ کیسے سیکھ سکتے ہیں بتائیں مجھے. ان کے لیے تو بالکل الگ ہی کلاس روم، جو صرف ترجمہ پڑھتے ہیں اور صرف عربی پڑھنا سیکھ رہے ہیں ابھی. لیکن اس بک 1 میں آپ کو کتنا کچھ پڑھا دیا گیا: مرکب توصیفی، مرکب اشاری، مرکب جاری، مرکب اضافی، اور کیا ہے، یہ ضمائر بھی پڑھا دیا آج. اور بھی بہت ساری، مبتدا خبر، خبر کی ساری قسمیں، کیا کیا چیزیں خبر بن سکتی ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی بک نہیں تھی، گرامیٹیکلی پڑھائی جائے تو. اور اگر کوئی بچہ ہے، بچے کو آپ کیسے پڑھائیں گے؟ بچے کو صرف آپ ریڈنگ کروائیں گے اور ترجمہ انگلش میں یا اردو میں، جو بھی اس کی زبان ہے. صحیح ہے، اتنا ہی کروائیں گے. کوئی نئی لیڈی ہے جس کو ابھی تک قرآن بھی پوری طرح صحیح کر کے پڑھنا نہیں آتا، اس کو گرامر کیسے آئے گی؟ اس کو تو عربی پڑھنی نہیں آئے گی. تو اس کو آپ صرف ترجمے کے ساتھ پڑھائیں گے. کبھی بھی کوشش مت کریں ایسے لوگوں کو گرامر سکھانے کی، وہ نہیں سیکھ پائیں گے. گرامر آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں دیکھیں ضمائر ہے، اگر میں نہ پڑھاؤں تو آگے تو اور بڑھتا جائے گا نا، نئی چیزیں آتی جائیں گی نا. تو ضمائر سمجھ میں آ گئے. ضمائر اب یہ 3 ٹائپس ہیں اور 2 ٹائپس اوپر ہیں، یہ والی 5. تو جو بھی آپ ضمیر دیکھیں گے یا تو مرفوع منفصل ہوگی، وہ تب کب ہوگی؟ جب وہ یہ اس حالت میں ہوگی، یہ مرفوع منفصل ہے. اگر یہی ضمیریں فعل کے ساتھ لگ جائیں گی، جیسے جیسے جلسہ میں ضمیر ہوتی ہے، اب یہ ضمیر جو ہے جلسہ جی. والی ضمیر کیا کہلائے گی؟ اس کو کیا مرفوع کہیں گے؟ متصل. مرفوع متصل کہلائیں گے. یہ مرفوع منفصل ہو گئی، یہ مرفوع متصل ہو گئی، ہی ہوا. اسی طرح جلست ہوگا تو ہیا ہو جائے گی، جلستہ ہوگا تو انتا ہو جائے گی، یا تا پہ زبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جی. لیفٹ ہینڈ والی ضمیریں جو ہیں وہ انا کے ساتھ بھی استعمال ہوتی ہیں، وہ فعل کے ساتھ بھی ہوتی ہیں. اس وقت یہ منصوب متصل ہوتی ہیں، منصوب متصل ہوتی ہیں، کیونکہ انا کے ساتھ آ رہی ہے اور فعل کے ساتھ آ رہی ہے. تو فعل کے ساتھ مفعول بن رہی ہے، تو مفعول منصوب ہوتا ہے، اس لیے منصوب متصل کہیں گے. اور انا کا جی. اسم بھی جو ہوتا ہے وہ بھی منصوب ہوتا ہے، تو منصوب متصل کہیں گے. پیچھے حرف جر آ جائے گا یا اسم آ جائے گا تو پھر اس وقت وہ مجرور متصل ہوں گی. ٹھیک ہے، لیفٹ ہینڈ والی ضمیریں. جی. اور اگر وہ ایجا کے ساتھ آئیں گی تو پھر کیا کہلائیں گی؟ منصوب منصوب متصل. منفصل. منفصل. بس یہ 5 ٹائپس ہیں. تو ابھی جب بھی کوئی ضمیر آپ دیکھیں، آپ اس کو پہچاننے کی قرآن میں بھی کوشش کریں، صرف میرے سامنے نہیں. اور بہت ہی آسان ہے. اب یہ ضمیر دیکھیں نا، یہ ضمیر منصوب ضمائر میں سے ہے نا، لیکن پیچھے اسم آ رہا ہے، تو اسم آ رہا ہے تو پھر یہ مجرور متصل کہلائے گی. لہا ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اب یہ کیا کہلائے گی؟ متصل تو ہے مجرور ہی، متصل. مجرور. مجرور متصل ہے. اب ابھی اسی کے پیچھے میں انا لگا دیتی ہوں یا انا لگا دیتی ہوں، تو اب یہ کیا کہلائے گی؟ منصوب متصل. منصوب. منصوب منصوب متصل ہے کہلائے گی. اسی کے پیچھے میں فعل لگا دیتی ہوں
तो वो क्या तब भी कहलाएगी? मंसूब मुत्तसिल। हाँ, उस मंसूब मरफू। मुतसिल ही रहेगी। और अगर मैं पीछे ई या लगा देती हूँ तो उस वक्त क्या बन जाएगी? मंसूब मुनफसिल। मुनफसिल बन जाएगी। बस क्लियर है बात। अभी हम एक्सरसाइजेस पे चलते हैं। अब ये कौन सी जमीर है मुझे ये बताएं, अटैच है या डिटैच है? सोच के बताइएगा। राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, तो कौन सी जमीरें हैं ये? मंसूब। अटैच। मंसूब। मंसूब जमीरों को ही अटैच, क्योंकि ये अकेले आती ही नहीं। इन्हीं इन्हीं को जी अटैच भी कहते हैं, इन्हीं को मंसूब भी कहते हैं। लेकिन मंसूब मुत्तसिल। सिर्फ ये होती असल में ये मंसूब ही होती है। ठीक है, असल में मंसूब जमायर है। दो जमायर है ना, मरफू और मंसूब। तो जी ये मंसूब ही होती है। लेकिन फिर पीछे देखते हैं, पीछे क्या आ रहा है? ये मजरूर तो नहीं हो रही कहीं, है ना? या फिर जी मंसूब तो नहीं हो रही। ठीक है, तो या फिर अकेली तो नहीं आ रही। तो फिर उनको मंसूब मुनफसिल भी कह सकते हैं, और उनको मजरूर मुत्तसिल भी कह सकते हैं। और अगर फेल के साथ आएंगी या इन्ना के साथ तो मंसूब मुत्तसिल भी। तो बेसिकली ये मुत्तसिल जमीरें हैं। ये अकेले कभी भी नहीं आती। अकेले भी आएगी तो हु नहीं आएगी, उसके साथ ईया जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये अकेले जी आ ही नहीं सकती। इनको इसलिए अटैच प्रोनाउंस कहते हैं। सही है, ये हमेशा जुड़ के ही जी आएंगी और लफ्ज के आखिर में जुड़ के आती है। ठीक है ना, ईया के भी आखिर में ही आ रही है ना, जी हर मुनफसिल। जगह आखिर में जुड़ के आती है। फेल के साथ भी आखिर में ही जुड़ के आएंगी। अब फेल के आखिर में लगी हो होती हैं, इन्ना के आखिर में लगी होती हैं। इसी तरह इन्ना की बाकी फैमिली के साथ भी, लकिन्ना हु, का अन्ना हु, पढ़ा नहीं आपने? का अन्ना हु, जी का अन्ना का, है ना? तो ये जमायर है। अभी आपने ये जमायर जो होते हैं ना, ये जो जमायर होते हैं, ये आपने अभी यहाँ अटैच करने हैं। ठीक है, जी जी आपके पास सारे ये क्या दिए हुए हैं? इसमू क्या है, इब्नू क्या है, इसमू क्या है, ये सब क्या है? इसम। इसमें है। ये सब है। हाँ, और फिर इसमें। इनके साथ अब जो इनके साथ जमीर ये जमीर जब जोड़ेंगे तो उस जमीर की मजरूर मुत्तसिल। मजरूर मुत्तसिल हो जाएगी। लेकिन कहाँ मिस। पर हु लगाना है, कहाँ पर हा लगाना है, ये आपने सोचना है। ठीक जी है, मिस एक जैसे सवाल। हाजी हिल बिंतु तालिबतुन, अब ये जुमला है। अभी जी जमीर जो होती है वो हमेशा पीछे लौटती है, आपको पता है ना? जी जी जो भी जमीर होती है वो पीछे जाती है। तो आपने यहाँ पर क्या है, इसका तर्जुमा क्या है? हाजी इल बिंतु, ये आपका मुब्तदा बन गया और ये आपकी खबर बन गई। ऐसे ही है ना? जी लाइन जी यहाँ जी पे जी आएगी। इसको तोड़ नहीं सकते कि इसको मुब्तदा बनाया इसको खबर नहीं। हाजी इल बिंतु तालिबतु, यहाँ पे लाइन आ गई। अब क्या करेंगे हम? ये मुब्तदा ये खबर, तो इसका तर्जुमा क्या हो जाएगा? ये लड़की एक स्टूडेंट आगे है ना? स्टूडेंट है। जी हाँ, जी ये लड़की एक तालिबा है, स्टूडेंट है। जी अच्छा, अब यहाँ पे जी क्या लगाएंगे? इसमें इसमें हु इसमें हाँ। लगाएंगे हाँ। या इसमें हा इसम। हाँ लगाएं? हाँ हाल, हाँ। हा हाँ लगाएं। हाँ। मिस हाँ, मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ बोले। मिस जो ऊपर सवाल में यली लिखा हुआ है ना, मुझे अजीब, मतलब कंफ्यूज हो गई मैं। मुजारे है, अलामते मुजारे लगी है, अच्छा अच्छा। पहले मुजारे है। अच्छा यली, इसका तो, हाँ सही। फीमा यली ठीक है। अद्दमीर। ठीक है ना? तो दा का मतलब है रखिए, पुट, है ना? जी वजह हमल फुट। भी होता है ना। जी वजह हमल क्या होता है? हमल को रख देना, है ना? हमल को रख देना का क्या मतलब होता है? वजह हमल का क्या मतलब होता है? हामिला हमला औरत निकाल की देना। इद्दत वजह हमल तक है। जी हामिला जब तक औरत हमल की रखा रहे। जब वो हमल रख देगी, बच्चा जन्म देगी, पैदा कर देगी, तो उसका इद्दत खत्म हो जाएगी। जी पता नहीं कहाँ पढ़ते हैं आप लोग, जो आपको कुछ चीजें ही नहीं पता। वजह हमल तो उर्दू का लफ्ज है, रोज यूज होता है। अभी आपको याद रहेगा। देखें, हामिला औरत की इद्दत कितनी होती है? वजह हमल तक होती है। और वजह हमल ये बना हुआ है वदा आ, माजी है इसका। अब मुजारे बनाए। याद आओ। यऊदी उ बनेगा पहले, जी यऊदी उ। अब इसको बनाए, कैसे बनेंगे? या ये गिर जाएगा, यदी उ बन जाएगा। अब इसका फिले अमर बनाना है ना, तो इसको गिरा देंगे, इसको सुकून दे देंगे, ये दा बन जाएगा। पीछे जबर क्यों लगाएंगे? यहूदा उ होगा ये। इसमें हल्फे हल्की आ रहा है ना, तो वो आपका जो है यहूदा उ फतहा से होगा।
तो ये दह बन गया। ठीक है, फिल अमर। इसमें अंता जमीर फाइल है, मरफू मुत्तसिल। फाइल हमेशा मरफू जमीरें होती है, मरफू मुत्तसिल अंदर ही आ रही है। ठीक है। फिल फरागी, खाली जगहों में रखिए, क्या रखिए, फीमा यली, जो कि नीचे आ रहा है, फॉलोइंग। फीमा यली, जो कि नीचे आ रहा है, अजमीरा हु या हा, नीचे आ। ठीक है, जो नीचे सेंटेंसेस आ रहे हैं उनमें आपने जमीर रखनी है, ये मतलब है। तो दा का मतलब होता है रखना, टू पुट। फिल इन द ब्लैंक्स इन्होंने कह दिया, लेकिन उसका मतलब पुट ही होता है, रखना। तो हम रख रहे हैं ना जमीरें यहाँ पे, इसमुहा। अब यहाँ पे मुझे बताएं किधर से किधर ले जाते हैं आप लोग, वबनुहा। अब यहाँ पे क्या है, वबनुहु आएगा, वबनुहु। मोहम्मद नबी, इसमें तो मोनस का जिक्र ही नहीं ना, तो हा नहीं लगाएंगे। उसका बेटा जो है, यानी कि हु की जमीर किधर जा रही है, बेटे की तरफ। मोहम्मद की तरफ, मोहम्मद की तरफ जा रही है। और यहाँ पे हा की जमीर किधर जा रही है, बिन्त तालिबा। की तरफ, बिन्त की तरफ जा रही है, तालिबा की तरफ नहीं जा रही, अच्छा। बिन्त। बिन्त की तरफ जा रही है। हाजी ठीक हिल है। बिन्तु तालिबतु, ये लड़की। इस्मुहा, यानी उस लड़की का नाम जैनब है। ठीक है, तो हा की जमीर ठीक। जा रही है। अब हाजर रजबु, ये जो आदमी है, ये ताजिरुन कबीरुन है। तो इसमें भी अभी क्या है, जी, सारे मुजक्कर ही आ रहे हैं, तो जमीर कौन सी लगेगी, इस्मुहु, हु। इस्मुहु। अब्दुल्ला, अब ये क्या बनेगी, ये जमीर क्या कहलाएगी, मजरूर या मंसूब, क्या कहलाएगी ये, जैसे मजरूर मजरूर मुत्तसिल। कहलाएगी कि इसम के बाद आती है ना। तो मजरूर मजरूर कहलाएगी, ये भी मुत्तसिल। मजरूर मुतसिल है, ये भी मजरूर मुतसिल, क्योंकि सारी मुजाफिल है बन रही है। उसका नाम, उसका बेटा, उस, है ना, ये है। जी, अब्दुल्ला ही, तो ये क्या बन जाएगा, अब्दुल्ला ही क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मतलब मुब्तदा, और ये बन जाएगी खबर। खबर। अब खबर की टाइप्स देखेंगे, यहाँ मुफरत खबर आ रही है, यहाँ मुफरत खबर आ रही है। अब्दुल्ला ही भी मुफरत ही खबर है, इसको आपने मुरक्कब खबर नहीं कहना, ये भी मुफरद ही खबर होती है। मुरक्कब पता है कब होती है, वो बाद, जब मुरक्कब जारी आता है, वो मुरक्कब खबर होती है। जब ज़र्फ मुदाफिला आता है, वो मुरक्कब खबर होती है। उससे पहले पहले जितनी भी ये मुरक्कब तौसीफी खबर बन जाए। अब यहाँ पे ये जो है ना, मुरक्कब यहाँ मुरक्कब खबर बन रही जारी। है, मुरक्कब जी जारी खबर बन रही है, शिव जुमला। ठीक है, यहाँ पे ये मुफरत के हुक्म में ये सारी खबरें, ये भी मुफरद है। तो मुरक्कब इजाफी हो या मुरक्कब तौसीफी हो, वो मुफरद ही खबर कहलाती है। तो मुफरद खबर की तीन किस्में होती हैं, एक तो मुफरद, या जैसे ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है। ये मुफरद तो नजर ही आ रहा है ना आपको। ये जी। अब्दुल्ला ही भी मुफरद खबर है। ठीक है ना। नाम है ना मिस ये, क्योंकि अल्लाह नहीं, का बंदा ना। नहीं इस वजह अब्दुल्ला से ही तो नाम है। नहीं, अच्छा, अब्दुल्ला तो नाम है ना मिस। नहीं उस वजह से नहीं, क्योंकि खबर तो अब्दुल्ला अब्दी बन रही है ना, वही मरफू है ना, वही खबर तो वही बन रही है ना। जी ठीक है, अल्लाह ही तो मजरूर है, वो तो खबर नहीं बन रहा। तो जी, खबर तो मुफरद ही हुई ना यहाँ भी, कि नहीं हुई, मुझे बताएं। जी अब दी खबर बन रहा है ना, जी अल्लाह तो नहीं बन रहे, वो तो मजरूर है, इसमें जलाला। तो जी यहाँ पे भी मुफरद है। इसी तरह अगर मुरकब तौसीफी है ना, तो उसमें भी मौसूफ जो होता है ना, वो ही खबर का इराब ले रहा होता है। तो मुरकब तौसीफी हो, मुरकब शारी हो, तो फिर क्या होगा, वो मुफरद के हुक्म में होगा। जार मजरूर। मुरकब शारी की नाम बात कर रही हूँ, वो इशारी। वो मुफरद के हुक्म में खबर है, या मुफरत के हुक्म में ही आएगा उस्ताजा। मुरकब हाजिर शारी, रजूल। मुरकब शारी कब खबर बनता है, मुझे बताएं, नहीं मुरकब बनता, शारी खबर बनता है, नहीं नहीं, नहीं। मुब्तदा। बनता ही नहीं। जी, तो मुफरत खबर जो होती है, या तो ये वाली होती है, ये वाली होती है, ये वाली होती है, ये वाली होती है, या मुरकब तौसीफी होती है। मुरकब तौसीफी भी जी। आ जाएगा यहाँ पे खबर बन के। ठीक है, मुरक्कब जारी भी। जी, मुरकब जारी को अलग कर दें। मुरकब इजाफी तौसीफी मुफरत खबर है, जी, जैसे जैनब मुफरत है, ये मुफरत है, वो मुफरत के हुक्म में है। जी, ठीक है, मुरकब जारी जब आएगी ना, वो मुरक्कब की शक्ल में खबर होगी आपकी, जी, शिव जुमला खबर जिसको कहते हैं, वो उसको अलग कर दें दूसरे मुरकबात से। मुरकब जी, जारी और मुरकब इजाफी,
یہ خبر بنتے ہیں نا مرکب اضافی یعنی ظرف مضاف الیہ. جی ظرف مضاف الیہ کو میں نے وہاں کیوں نہیں ڈالا مرکب اضافی میں؟ کیوں نہیں ڈالا؟ کیونکہ یہ ظرف مضاف الیہ اس کی جوڑی ادھر ہے، اس کی جوڑی مرکب جاری اور یہ دونوں مل کے شبہ جملہ کہلاتے ہیں. یہ دونوں مل کے شبہ جملہ کہلاتے ہیں. ان کو شبہ جملہ خبر کہتے ہیں. جملہ خبر بن رہی ہے، یہاں مرکب نہیں خبر بن رہا، یہاں جملہ خبر بن رہا ہے. شبہ جملہ کہتے ہیں نا، شبہ جملہ خبر، قائم مقام شبہ جملہ خبر. تو یہ مفرد خبر تو نہیں ہوئی، تو شبہ جملہ خبر ہے. ٹھیک ہے. تو مفرد کے حکم میں کیا کیا آئے گا؟ یہ آئے گا، یہ آئے گا، مرکب اضافی آئے گا اور مرکب توصیفی آئے گا. اور مرکب اشاری نہیں آئے گا کیونکہ مرکب اشاری خبر بنتا ہی نہیں. اور یہ والے جو جی دو ہیں ان کو آپ شبہ جملہ، یہ جملہ ہے. تو خبر کی دو قسمیں ہو گئی بیسیکلی. ایک خبر مفرد اور ایک مرکب شبہ ہم، جملہ. نہیں، ایک مفرد اور ایک جملہ. ایک مفرد اور ایک جملہ، یہ بھی جملہ ہی ہے نا، شبہ جملہ جملہ ہی ہے جی نا. تو مفرد میں کیا کیا آ گیا؟ مفرد میں آپ کا زینب آ گیا، مہندس عبداللہ آ گیا اور مرکب توصیفی آ گیا. یہاں پر جملے میں کیا آ گیا؟ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. پھر ایک ہوتا ہے شبہ جملہ. مرکب جاری اور ظرف مضاف. شبہ جملہ میں مرکب جاری اور شبہ آ گیا، اور جملے میں جملہ اسمیہ آ گیا اور جملہ فعلیہ آ گیا. جملے کی دو اچھا قسمیں ہیں. ایک شبہ جملہ جی ہوتا ہے جس میں مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ آ جاتا ہے، اور ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے جس میں جملہ فعلیہ، جملہ ہاں اسمیہ بھی آتا ہے، جملہ فعلیہ بھی آتا ہے. تو جملے کی دو قسمیں ہیں، شبہ جملہ اور جملہ، یہ والا جملہ تام کہلاتا ہے نا، جملہ جی اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے. تو یہ ٹوٹل آپ کا ٹوٹل 4 مرکب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آپ کا مرکب جاری. جاری، اشاری، اشاری ظرف کو مضاف اشاری الیہ. توصیفی. ہاں اشاری بھی ہوتا ہے. اشاری تو خبر بنتا ہی نہیں نا، وہ تو ہمیشہ جی مبتدا بنتا ہے، جس کو تو نکال ہی دے. جاری آگے کیا ہوگا؟ مرکب اضافی، مرکب توصیفی. مرکب توصیفی. اب مرکب توصیفی اور اضافی یہ مفرد کے حکم میں آتے ہیں. جیسے یہ ہے ایسے یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ مفرد کے حکم میں آتے ہیں تینوں، چاہے وہ بالکل اکیلا ورڈ ہو، چاہے مرکب اضافی ہو، توصیفی ہو، یہ مفرد ہی ہوگی خبر. ٹھیک ہے. اور باقی اشاری تو نکل گیا. اب جاری جو ہے ظرف مضاف الیہ. ظرف مضاف الیہ بھی ہوتا ہے نا، ظرف آتا ہے آگے مجرور جی اسم ہوتا ہے جیسے متعارف. تو یہ جو شبہ جملہ کے حکم میں آ جاتے ہیں. خبر جب بنیں گے تو آپ کہیں گے شبہ جملہ خبر ہے یہ. اور اگر جملہ اسمیہ یا فعلیہ تو آپ بولیں گے جملہ خبر ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو یہ جب ہم کریں گے نا انشاءاللہ جب ان کو ہم پریکٹیکلی کریں گے تو پھر میں ہر ایک خبر کا پوچھوں گی کہ یہ کون سی خبر ہے. مفرد ہے، مفرد کے حکم میں. ابھی یہ والی مفرد کے حکم میں مفرد خبر بن رہی ہے. جیسے یہ جی مفرد ہے نا، ون ورڈ ہے کیونکہ اس ون میں ورڈ. خبر تو اب دی ہے نا، خبر تو یہی ہے نا. تو جی مفرد ہی خبر ہوئی نا. موصوف میں بھی جی موصوف ہی خبر بن رہی ہوتی ہے. وہ جو اس کی صفت ہوتی ہے وہ تو اس کو فالو کر رہی ہوتی ہے نا، تو وہ تو خبر نہیں ہوتی، اس کا اعراب تو اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. تو اصل میں موصوف، اصل میں مضاف اور اصل میں یہ مفرد خبر ہوتے ہیں. اور یہ والی شبہ جملہ خبر ہے، اس کو آپ کہیں گے شبہ جملہ خبر ہے. ٹھیک ہے. مرکب جاری جو ہے نا یہ شبہ جملہ خبر میں آئیں گے. اور جی اگر جملہ اسمیہ بن کے خبر آ رہی، جیسے کل میں پڑھا رہی تھی جملہ اب دیکھیں یہاں پہ مرکب توصیفی خبر بن کے آ رہی ہے نا، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، مفرد ہے. یہ مفرد. کیونکہ دیکھیں خبر صرف یہ بن رہی ہے، یہ تو اس کی صفت ہے آگے، تو اس لیے اس کو مفرد خبر کہتے ہیں. کیونکہ اس کا اعراب تو اس کو فالو کر رہا ہے نا. یہ زبر لے لے گا تو یہ بھی زبر لے لے گا، یہ زیر لے لے گا. اصل چیز جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے پہلی والی، چاہے وہ مضاف ہو چاہے یہ ہو. اس کا اعراب بدلتا ہے تو اس کا بھی چینج ہو جاتا ہے. یعنی اگر مضاف پہ زبر آ گئی تو وہ اب وہ تھوڑی خبر بنے گا. وہ تو زبر کسی وجہ سے آ رہی ہے نا، پیچھے اننا آ رہا ہوگا یا مفعول بن رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا، کچھ نہ کچھ ہوگا نا. تو خبر تبھی بنتی ہے جب دمہ ہوتا ہے، ایک دمہ یا دو دمے. تو یہ آپ کی خبر ہے اور یہ مفرد کے حکم میں. اور یہ مرکب جاری والی بھی مفرد کے حکم میں. اور یہ والی کس میں؟ شبہ جملہ ہے خبر. جی کیونکہ ٹھیک ہے. مرکب اور جاری یہ ہے. والی کیا ہے؟ اس کو شبہ جملہ کہیں گے، اس کو مفرد کہیں گے، اس کو بھی مفرد ہی کہیں گے. آپ نے ہضم کیا اس کو کہ یہ مفرد کیسے ہے؟ اس کو جی بس مفرد، کافی. اس کو مفرد کے حکم میں اس کو مفرد خبر کہیں گے.
अभी से पक्का कर ठीक लें, है मुरक्कब जी तौसीफी हो या मुरक्कब इजाफी हो या ये मुहंदिस ओनली हो, ये मुफरदी खबर है सारे। इतनी सी बात मतलब नहीं हजम हो सकती आप लोगों से, चुप करके बैठे हैं, कोई जवाब ही नहीं आ रहा मुझे। मिस हो गया नहीं नहीं समझ हम मरकबे समझ आ गया है। जब ये आएंगे ना मुरक्कब जारी ज़र्फ, ये शिव जुमला खबर होते हैं, इनके साथ शिव जी जुमला खबर लगता है, जुमला है, ये मुफरत खबर नहीं है। शिव जुमला भी जुमला पूरा खबर जुमला नहीं है, जुमला भी पूरा जुमला नहीं है, पूरा जुमला तो जुमला इस्मिया होता है और जुमला फेलिया होता है ना। जी जी जो जुमला होता है सही वाला वो तो फेलिया या इसमें होता है, कंप्लीट मानी देता है। ये तो कंप्लीट मानी नहीं देते ना, ये तो जुमले की तरह होते हैं, शिव जुमला जी होते हैं। शिव का मतलब सिमिलर टू जुमला। तो ये जो है ये भी आपके किस्में ये शिव जुमला कहलाते हैं। और जुमले में अगर जुमला खबर बन गया तो जुमला इसमिया पूरा की पूरी खबर बनेगी, उसका मुब्तदा भी होगा, उसकी खबर भी होगी, ठीक है। खबर भी और वो पूरा जुमला इसमिया बन के या फेल होगा, फाइल होगा, मफूल होगा, जुमला फेलिया बन के खबर बनेगी। तो खबर की कितनी किस्में जी हो गई? नंबर एक मुफरद, मुफरद नंबर दो शिव जुमला सिर्फ जुमला, नंबर तीन जुमला। जुमला इस्मिया बस जुमला, जुमला जुमला जुमले में दो फेलिया चीजें आपको पता होनी जुमला चाहिए। जुमले में दो चीजें, शिव जुमला में भी दो चीजें। शिव जुमला में भी दो चीजें हैं, जुमले में भी दो चीजें हैं, इस्मिया फेलिया। से फेलिया फेलिया और शिव जुमले में मुरक्कब जारी ज़र्फ मुदाफिल है। मुझे नोट्स ज़र्फ और चाहिए। मुदाफिल है हाँ, जी शिव जुमला मुरक्कब जारी और ज़र्फ मुदाफिल है, इसमें दो हो गई। और इसमें तीन हो गई, एक तो मुफरद वर्ड जैसे तालिबतुन है, ठीक है। जी दूसरा खाली इसमें एक किस्म मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी। तौसीफी जी तीन चीजें इसमें हो गई, दो इसमें हो गई पांच और दो इसमें हो गई सात, ठीक है। तो ये सात तरह की नाम है खबर के, सात नाम है खबर के। नाम तो तीन ही है लेकिन इसके अंदर तीन चीजें आ रही है इसके अंदर। सब कैटेगरीज के साथ बस, अगर मिला के हाँ, देखा जाए तो हाँ तो सात है बस ठीक है। अभी आपने इस चीज को प्रैक्टिकली करना है ताकि ये पक्की हो जाए। बहुत जल्दी, अगर सही आप एक साल में सीखना चाहते हैं ना पूरी ग्रामर और जान छुड़ाना चाहते हैं तो ये इस तरह आपको चलना होगा मेरे साथ। अब यहाँ पे जो खबर बन रही है ना वो क्या बन रही है? मेरा तो फिर गुरफती मैं मिस ये शिव जुमला खबर है ये शिव जुमला खबर है। यहाँ पे क्या है? मुफरत ये खबर। मुफरत और ये वाली खबर है खबर क्या है? ये भी मुफरत है मिस ये भी मुफरत मुफरत ये भी क्योंकि मुफरत है, मरकब ये भी मुफरत है, ठीक तौसीफी है। जी चलिए अब हो गया। अब अगला जुमला देखते हैं, यहाँ पे क्या लगाना है आपने? हाँ आमिना व को उख्तुहा व उख्तुहा। व हा की जमीर किधर जा रही है? आमिना उम्मुहा, की तरफ उम्मुहा। उम अम्मुहा फिल मतबख। आमिना की तरफ आयशा तु तबीबा तुन, यहाँ पे क्या है? व उख्तुहा उख्तुहा मुमरिदतुन, सही है। और हा की जमीर अच्छा, आयशा की एक तरफ बंदे जा की रही आवाज आवाज अभी तक मुझे नहीं आई, जुबैदा। जुबैदा, आपको जमायर की समझ आई है? हाँ जी मैं इधर ही बैठी हूँ, मुझे खांसी आ रही थी, मैंने बंद कर दिया फिर। अच्छा, जमायर की समझ आ गई। बाकी खबर जो हाँ है जी वो मैंने बताया, ये मुफरत भी होती है और शिव जुमला भी होती है। और खबर की तीन किस्में होती है, मुफरत और शिव जुमला और जुमला, तीन किस्में जी होती है। मुफरत जी में तीन चीजें आ जाती हैं, सही है। और फिर उसमें चीज शिव जुमला में दो चीजें आ जाती हैं और जुमले में भी दो चीजें आ जाती हैं। ये नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है, रिकॉर्डिंग को सुन के जब भी टाइम मैम मिले। मैंने लिख लिया। लेकिन मैंने बेटर, लिख लिया। हाँ, जो नोट बना के भेज देना उसकी तरफ से सदका जारिया होगा। अच्छे से बनाए और बना के भेज दे, जिस तरह मैं मिस एरो भेजनी लगाती हूँ है ना, एरो लगाती हूँ उस तरह। पहले आप खबर हम्म, की तीन, खबर की अकसाम, खबर 3 एग्जाम। तीन अकसाम है। आप इसके नीचे तीन रो डालेंगे ना इस तरह। यहाँ पे क्या है? मुफरत। मुफरत के अंडर में जो टैब आएंगे वो दो तो आए। मुफरत, मुफरत खबर कौन कौन सी होती है? एक तो उनकी मिसालें लिखते हैं, ठीक है, मिसालें लिख देंगे या मिसालों से पहचान देंगे, और साथ साथ नाम भी लिखने हैं तो लिखते हैं मुरक्कब के। फिर उसके बाद यहाँ पे शिव जुमला, और यहाँ पे क्या होगा? जुमला हो जाएगा। जुमला जुमला के अंदर में दो दो चीजें, शिव जुमला के अंदर में दो चीजें, मियां एंड फेरी इसके अंदर में तीन जी चीजें, इसके अंदर में तीन चीजें। मुफरत तो होती है खबर, लेकिन मुरक्कब जारी भी होती है। मुरक्कब तौसीफी की मिसाल हमें मिल गई,
यहाँ ये मुफरद खबर है, यहाँ पे ये आपकी शिव जुमला खबर है। अब जब भी खबर आएगी तो आपने मुझे बतानी है जुमला इस्मिया बन रही है, जुमला फेलिया बन रही है, या शिव जुमला बन रही है, या मुफरद खबर है। ठीक है, तो इस तरह से जी नोट करना। खरजा मोहम्मदुन मिनल फसली, मोहम्मद निकला क्लास से, व खरजा और निकला उसके साथ उसका जमीलुहु जमीलुहु, उसका दोस्त, उसका क्लास फेलो। जमीलु हा तो नहीं करेंगे ना। अब ये हु नहीं, की नहीं जमीर किधर जा रही है? मोहम्मद की मोहम्मद तरफ। की तरफ। दोबारा मोहम्मद ना लाना पड़े इसलिए जमीर यूज हुई है। हर जमीर के अंदर एक इसम छुपा होता है जो कि पीछे होता है। मा आ हु की जमीर कहाँ जा रही है? मोहम्मद ये की तरफ ही जा की मोहम्मद तरफ की ही आ रहा तरफ। मोहम्मद। जमीलु जी हु की जमीर भी मोहम्मद की तरफ ही जा रही है। जी, जी ठीक ये है, लेना। और खराजा फेल है। ठीक है ना, खराजा और निकला उसके साथ उसका दोस्त, दोस्त। है ना। तो हम्म, माआहू जो है ये आपका कौन सा मुरक्कब बन रहा है? ज़र्फ। जर्फ है ना, मुजाफ। ज़र्फ ज़र्फ, ज़र्फ मुदाफिल है, तो मुदाफिल है। ये ज़मीर की क्या हालत होगी? मजरूर और मुत्तसिल। ये वाली मजरूर। भी मजरूर मुत्तसिल होगी। ठीक है, मजरूर। बाकी अच्छा ये मिस, इसम भी खाली अगर इसम हो तो भी मुफरत होगा ना? अगर खाली इसम लिखा हो खबर की जगह पे तो। हाँ, खाली इसम लिखा सही। हो तो वो तो मुसर होता ही है, वो तो नकरा होता है, तनवीन के साथ होता है ना। अब देखें जी यूसुफ में भी, जैसे यूसुफ, एक तो मरकब इजाफी, मरकब तौसीफ है, अच्छा, और खाली इसम। अंता यूसुफ, है ना। जी अंता यूसुफ, तो ये मुब्तदा बन रहा है। जब भी ये जमायर नजर आए इनको तो मुब्तदा ही बनाना है। ठीक है, और जी। यूसुफ क्या बनेगा? खबर बनेगा। अब ये खबर की खबर। खबर कौन सी बने। किस्म है? मार। मुफरत। मार। मुफरत। मुफरद है ना मुफरद। मगर। मुफरद। मुफरद है। मुफरद। मुफरद है, खबर की मुफरद किस्म है, मुरक्कब नहीं है। जी मुरक्कब क्या होता है? मुरक्कब यानी मुफरद के मुकाबले में मुरक्कब होता है ना, और वो मुरक्कब इजाफी भी होता है, इशारी भी होता है, वो वाला खबर नहीं आ रहा। वन वर्ड खबर आ रही है यहाँ पे। और वो जब मुफरद। आएंगे ना तो वो भी मुफरद ही कहेंगे खबर, लेकिन होंगे वो मुरक्कब की शक्ल में, लेकिन उनको आप मुफरद खबर ही कहेंगे। ये समझ आ गई? चल, जी। जी उसके बाद ये कह रहे हैं कि आइंदा का कलम। अभी एक यहाँ पर और चीज बतानी है आपको। तो जब हम किसी चीज के बारे में पूछते हैं ना, क्या तुम्हारे पास कलम है, तो चीज है ना, ऑब्जेक्ट है, तो इंदा कहते हैं। ठीक है, जी। और जब जी। किसी जी रिश्ते के बारे में पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई भाई है, तुम्हारी माँ। बहन, तो हम उस वक्त क्या लगाते हैं? इंदा लगाते हैं क्या? माँ। ली। अल्लाह ली। का। माँ। ली। नहीं, लका। लका, लका ली। लका। ठीक है ना। लका। अब इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब भी इंदी में होगा। इंदा का में सवाल होगा तो जवाब भी इंदी में ही होगा। और अच्छा। अगर लका, अल्लाह की उख्तुन या लका उख्तुन, ठीक है, तो अब इसका जवाब क्या होगा? ली में होगा। हाँ, ली में। ली उख्तुन वाहिदुन, उख्तुन जी वाहिदतुन। ठीक है ना, अल्लाह का तो मिस यानी अखुन। कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग इंदा लगाएंगे, और लिविंग थिंग्स और रिलेशनशिप्स के लिए हम ला लगाएंगे, हाँ, ऐसा? अभी आपने यही एक्सरसाइज करनी है ना इधर। ठीक है, अच्छा, अभी ये क्या कह रहे हैं? हाथी खमसता, लाइए, ब्रिंग 5 सवाल और उनके जवाब। ठीक है, कल मिसालिल आती, आने वाली मिसाल की तरह। अब आपने सवाल भी बनाने हैं और जवाब भी बनाने हैं। इंदा का कलमुन, जवाब क्या है? नाम इंदी कलमुन। तो आ के जवाब में आपको या तो ला लिखना होता है या नाम, ये मस्ट है। ठीक है, इसके बगैर जुमला नहीं जी शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आपने लिखना जी है। अगर ला लगाना है तो उसके साथ माँ भी लगाना है। ठीक है, लेकिन अगर नाम लगाना है तो सिर्फ नाम के बाद डॉट लगा दे। सही। अच्छा, जी नाम इंदी कलम, क्योंकि यहाँ इंदा का था ना, और ये ऑब्जेक्ट है इसलिए। अब आपने इस तरह 5 सवाल बनाने हैं। इंदा का दफ्तरुन, क्या तुम्हारे पास कॉपी है, नोटबुक है? आप कहेंगी नाम इंदी नाम दफ्तरुन। 5 सवाल बनाने, ये करें। आपने बनाने हैं, अभी होमवर्क करना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे जी भी है। इसमें आपकी मिसाल है आइंदा का कलम, क्या आपके पास कलम है? तो ला मा, ला। नफी में जवाब देना है, तो ला मा इंदी कलम। अब आपने ये नहीं कहना ला मा ली कलम, ये नहीं कहना। सवाल इंदा में जी है तो जवाब भी इंदी में हो, इंदा में होगा। लेकिन का की बजाय आपको या लगाना है। अगर जी यहाँ पर आप का ही लगा देंगे, फर्ज करें, तो क्या हो जाएगा? ला मा इंदा का तो कलम।
तुम्हारे पास कलम है नहीं। नहीं, तुम्हारे पास कलम नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है, जी आप उसको क्या जवाब जी दे रहे हैं। तो पहले आप उर्दू या इंग्लिश में बना लें, उसके बाद उसका तर्जुमा करें। अच्छा, अब आपका यहाँ पर क्या है, अदिफ का मतलब है कि मुजाफ इलैह बनाइए अस्मा को। ठीक है, ये जो अस्मा है इनको मुजाफ इलैह बनाना है। अल जी। आतियती इलल मुतकल्लिमी वल मुखातिबी वल गायबी, ये ज़मीरें होती हैं तीन तरह की। मुतकल्लिम की ज़मीरें कौन कौन सी होती हैं बताइए। या मुतकल्लिम, हम्म, और ना। और तू, ना, ना। हाँ ना ना, नहीं, वो तू जो दो होती है ही होती वो हैं, दो ही वो नहीं होती हैं। बनती, वो मुजाफिला नहीं बनेगी। हमने मुजाफिला बनानी है। तो वो वाली जमीरें जो होती है ना, तू ता वाली, वो फाइल बनती है बस, फेल के साथ, या अकेले आती है। ये वाली जो है ना, वो जुड़ के नहीं आती ना। अच्छा, यहाँ पे वाल हम्म, मुखातबी की कौन सी जमीरें होती है, का कुमा का, ताकुमा। कुम, कुम। और की कुमा कुन्ना, वो भी होती है ना। जी वल गायबी, गायब की कौन सी होती की, है, जैसे कुमा, हु कुम, और हा। जी, हुमा, हुम। अभी हु, यही आपको सिखाई जा हुमा, रही है। अभी देखिए, सिर्फ आपको ये सिखाई जा रही है, ये जमीरें, या ये और ना, या और ना, या है मुतकल्लिम और ना, और यहाँ पे का और की मुअन्नस की और का मुजक्कर की, जी और हो और हा, वाहिद की जमीर। मुझे लगता है ये भी पता नहीं आएगी, ये भी नहीं आ रही, जमा की भी नहीं आ रही, सिर्फ वाहिद की जमीर आ रही है। गायब की, फिर मुखातिब की, और ये गायब की, और ये मुतकल्लिम की। अच्छा, अब ये लफ्ज क्या है, बैतुन बैती, इन्होंने एग्जाम्पल दे दी ना आपको बना के। जी बैतुन क्या है, इसको आपने मुजाफ बनाना है, तो ज़ाहिर इसकी तनवीन गिरा देंगे ना, जी जी बैतू। बैती बन जाएगा। ठीक है, या लगाएंगे तो बैती बन जाएगा। पहले या लगानी है, फिर का लगानी जी है, और फिर हु लगानी है, और फिर हा लगानी है। की भी नहीं बताया अभी आपको, अभी बस अच्छा। या, काफ और का और हु और हा। अच्छा, अब कलम उनके साथ क्या हो गया, दूसरी एग्जाम्पल है, हाजा पानी, मुब्तदा बन जाएगा, मुब्तदा ही बनेगा ना हाजा। जी, जी कलमी, मुफ- ये मेरा कलम है मुफरत ना। खबर, मुफरद। कलमी मुफरत खबर बन रही है, और ये खबर है। तो ये जुमला इस्मिया बन गया। ये वाला जुमला इस्मिया बना है, बैती, बैतु का। जी जी, इस जुमला इसमें है। ये बैती जुमला इस्मिया है। मेरा घर। वही। मेरा घर कहाँ से जुमला इस्मिया, मुझे बताएं। मेरा कप। है आया ही बै नहीं है आया ही नहीं, तो जुमला इस्मिया अच्छा कैसे बन गया। अच्छा। ये मेरा मेरा कलम है, इसमें है आ रहा है, इसलिए जुमला इसमिया बन रहा है। मिस बैती में मुब्तदा नहीं है ना। मुब्तदा नहीं है तो लगाएं मुब्तदा, खबर बनाएं इसको। इसके आगे हाजा लगा देते हैं। हाजा लगा दें, है ना। हाजा बैती, हाजा बैती, हाजा बैतू का, हाजा बैतू, हाजा बैत, जाने का भी लगा सकते हैं। ठीक है, दूर का जी, इशारा लगाएंगे। तो ये तो सिर्फ फ्रेज है ना, ये तो सिर्फ मेरा घर, मेरा घर तो, मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर करती रहेंगी तो क्या लोगों को क्या समझ आएगा, कुछ भी समझ नहीं आना। मेरा घर नया है, कोई खबर भी लगानी है ना आगे। जी जी मेरा घर पुराना है, मेरा घर महंगा है, मेरा घर सस्ता है, तो फिर वो जाके बनता है ना जुमला, जब है लगती है। सिर्फ मेरा घर तो किसी को समझ ही नहीं आना, मेरा घर बोलेंगे, कुछ आगे भी बोलो ना मेरी बहन, कुछ बोलो। जी। क्या मेरा घर, बैती बैती जदीदुन। बैती जदीदुन, खबर लगा दे, मुफरत लगा दे। जी सही है, तो इसी तरह बैतू का, ये भी आपका वो है, ये वाला जुमला बन रहा है इसमें, और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें ये मुब्तदा है, अगर सिर्फ कलम ही कहेंगे ना तो वो सिर्फ खबर बनेंगे, ये सिर्फ जी खबर बनेगा। इसके साथ आपने मुब्तदा लगाना है, हाजा बैतुन, या इसको मुब्तदा बना लें और इसके आगे खबर लगा लें, बैती अल जदीदुन। बैती जदीद, बैती खुद ही मार्फा है, अल कहाँ लगता है मुजाफ पे। हाँ जी, जब हाँ आप खुद ये वक्त गलतियां नहीं लगता। करेंगे ना, तो तभी आप जो है सीखेंगे। अभी आपने अल बैती कहा है, मुझे देखें मुजाफ पे कोई अलिफ लाम आता है, नहीं, नहीं। नहीं आता। ना, अलिफ लाम भी नहीं आता, तनवीन भी नहीं आती। हाँ, तो क्यों लगाया आपने।
अलबैती। अगर वो मुफरद होता ना, अलबैतु होता, तो वो बब लगा देती ना, जी, तब अलबैतु लगा जो, देते हैं। अलबैतु जदीदुन। मुजाफ मुजाफ इलैह बन के खबर बन रही है, मुब्तदा बन रहा है या खबर बन रही है, जो मर्जी बना ले। मुरक्कब इजाफी जो होते हैं ना, ये मुरक्कब इजाफी है, वो सब कुछ बन जी, सकते। मुब्तदा भी बन सकते हैं, खबर भी बन सकते खबर हैं। बनेंगे तो मुफरत खबर के हुक्म में होंगे, मुब्तदा बनेंगे तो वो, वहां पे भी मुब्तदा तो सिर्फ बैत ही होता है, ठीक है। और वो चूंकि मारफा है, मारफा क्यों है, क्योंकि मारफा की तरफ मुजाफ लाया हो रहा है। तो कुछ चीजें कुछ पिक कर लेते हैं, इसलिए कहते हैं ना मुजाकरा करना चाहिए क्लास के बाद स्टूडेंट को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सहाबा सीखते थे तो मुजाकरा करते थे बाद में, किसी की कोई चीज मिस हो जाती थी कभी, किसी की कोई, तो वो सब मिलके फिर एक दूसरे के साथ पैचअप कर लेते, मेकअप कर लेते थे। तो ये आपका हाजा कलमी, ये मेरा घर है, ये तुम्हारा घर है, ये उसका घर है, ये उस इस लड़की का मोहन्नस घर। का घर। हाँ बस यही है, जमीरें चेंज करती रहे तो होता जाएगा। तुम्हारा, तुम्हारा जब की लगाएंगे तो तुम लड़की का घर बनेगा। जी। का करेंगे जैसे जजाकल्ला कहते हैं ना, और जजाकिल्ला कहते हैं, तो का और की से फर्क पड़ता है। लड़कियों को भी जज़ाकल्लाह कह देते हैं। हाँ कह देते हैं, मैंने बड़ी बड़ी टीचर्स को देखा है, बड़ी बड़ी टीचर्स को, ग्रामर की टीचर्स को मैंने देखा जजाकल्ला, क्योंकि वो जबान पे चढ़ जाता है ना, फिर वो को जी। बावजूद कोशिश के भी नहीं बोल सकते। मैं जब से सीखा है ना, मैं जब कह रही थी किसी फीमेल को तो जेड लगाती हूँ काफ के नीचे। लगानी चाहिए। जाकिल्ला। अच्छा अब इसको बनाए, इसकी चारों जमीरें लगानी है, सबसे पहले या वाली लगानी है, फिर का वाली लगानी है, फिर किताबी। फिर हु वाली किताबी किताबी। लगानी किताबों है, का फिर किताबुहा। आपने हा वाली लगानी है। ठीक है। और ये किताबुहा। एक्सरसाइज आपने करनी है, शरीरी, शरीरु का, शरीरु हु, शरीरु हा, शरीर। हाँ। तर्जमा में लिखना है। और ये मुरक्कब इजाफी बनेगा तो इसका ये गिर जाएगा, जी शरीरी। शरीर। हाँ या लगाएंगे तो शरीरी हो जाएगा, या को जी अपने से पहले पेश चाहिए। का लगाएंगे तो फिर शरीरु ही रहेगा, हु लगाएंगे तो जी शरीरु ही रहेगा, हा लगाएंगे तो शरीरु ही रहेगा। सिर्फ या से पहले यहाँ जेर आ जाएगी। बा के नीचे किताबी, भी जेर आएगी ना। इसमी, मिंदीली, इब्नी, ठीक है। सयारती, सजारती। मिफ्ताही, हा के नीचे दे। तनवीन गिरा देनी है क्योंकि इसको मुजाफ बना जी। रही है मुरक्कब इजाफी। यदी, लेकिन यदू तनवीन का, गिरा के यदू जेर हा, लगा के या। तो इसको भी करना है। फिर ली, देखें वो क्या कह रहे हैं, ली मेरा, तुम्हारा। अब देखें, मैंने बताया कि यरफ जर ली है, जमीर पे जाता है तो ये ला हो जाता है, ठीक है। सब पे ला ला ला, पूरी 14 जमीरों पे, 13 जमीरों पे एक या के या जो है उसको पीछे जेर चाहिए, उसकी डिमांड ये पूरी कर देता है, ली पूरी कर देता है। कहता है, ठीक है मैं ली रहूंगा, ला नहीं होऊंगा। बेशक तुम जमीर हो लेकिन मैं ली ही रहूंगा, ला नहीं बनूंगा। समझ आइए। जी। इस जी इसम भी डिमांड पूरी करता है और हरफ भी डिमांड पूरी करता है इसकी हरफ भी डिमांड पूरी करता है, इसम भी। वो जेर ले आते हैं, फेल इसकी डिमांड पूरी नहीं करता। फेल कहता है मैं अपने नीचे जेर नहीं लगाऊंगा, तो फिर क्या करते हैं हम, नून नून का इजाफा विकाया करते लाते हैं, हैं। नून कुतनी जैसे नून कहते विकाया हैं। लाते नून कुतनी काया। नहीं, विकाया। नून कुतनी नहीं, नून विकाया। कुतनी तो नून वो होती विकाया। है ना जो तनवीन की जगह पे आती है, उसके नीचे जेर आती है। वो नून कुतनी नहीं, वो होती है, वो अलग है, वो तजवीद का रूल है। ये नून विकाया है, तो ये नून या से विकाया। पहले नून लगा के जेर उसको दे देते हैं ताकि ये भी खुश हो जाए और फेल भी खुश हो जाए, फेल भी नाराज ना हो, वरना ये जेर नहीं। फेल के नीचे आ जाएगी। अच्छा, ली उख्तुन वाहिदतुन। अब ये इंसान है ना, ह्यूमन है ना, तो ली आया है। यहाँ पर भी भाई ह्यूमन है इसलिए लका आया है। यहाँ पे इसी तरह तिफलुन, ये भी ह्यूमन है और ये भी ह्यूमन है, तो इसलिए यहाँ पे आपका क्या है, ये लाम ही आया सब जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया तब इंदी कहेंगे, अब किताब। ली नहीं कहेंगे, ली किताबुन नहीं कहेंगे, इंदी किताबुन। किताब के साथ इंदी लगाएंगे, अखुन के साथ ली लगाएंगे। यही लगाएंगे। और ला नकुलू, नहीं हम कहेंगे इंदी अखुन, ये गलत है। हम्म, हम्म, इसको कहेंगे ली अखुन।
اور اندی کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ اندی کتابن، اندی دراجتن، میرے پاس بائک ہے. تو جو آبجیکٹ ہوگی تو اندی لگائیں گے. کتنی پیاری چیزیں سیکھ رہے ہیں نا. اب ما آ اور اندہ میں کیا فرق ہے؟ کون بتائے گا؟ میں نے بتایا ہوا کلاس میں. جی ما آ اور اندہ. مس مع مس مع کا مطلب جو ہے وہ ساتھ ہے، پاس، ہاں، اور اندہ کا مطلب پاس. اندہ کا مطلب ہے پاس، اور پاس. ماں کا ماں کا مطلب پاس ہے، وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ کہیں یہی بھی ہو سکتا آپ ہے. نے آفس کی مثال دی تھی نا میرے ہاں، تو اگر کہ آفس میں کہنا ہے تو پھر اندہ کہیں گے. پاس، جی. مدیر کے پاس ہے، یعنی اس کے آفس میں ہے. ہوں. اور اگر کہیں اور ہیں، اس کے گھر میں ہے، لائبریری میں ہے، کہیں اور ہے، آفس میں نہیں ہے، تو پھر ما آ کہیں گے. جیسے ماں خرجہ حامدن، خرجہ فعل ہے، حامدن کیا بنے گا؟ فائل. فاعل. فاعل اسم ظاہر ہے. کیوں اسم ظاہر فاعل ہے؟ ہوا کی وجہ سے. فعل نہیں، کا پہلا صیغہ ہے. اسم ہے نا مس، اس کے ساتھ اسم ہے نا، حامد اسم ہے. ہاں، تو اسم ہے نا، تو اسم ظاہر ظاہر فاعل. فائل جی، اسم جیسے ظاہر اللہ، جی ہوں، جیسے اللہ بھی ظاہر فائل ہے، ہاں آتا ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن جی اسم ظاہر فاعل کب کب آ سکتا ہے؟ بتائیں مجھے. پہلے سیگے میں اور چوتھے سیگے میں. بس یہی مس اسم ضمیر کے سیغے میں اور واحد، ہاں ضمیر پہلے اور غائب کے چوتھے. سیغے میں اور مؤنث کے سیغے میں جو چوتھا سیغہ پڑتا ہے. ضمیر کے صیغے میں ہوا نہیں، پہلے اور چوتھے صیغے میں. اس بات کو یاد رکھیں. گردان کے چاہے مضارع ہو ماضی ہو، پہلے اور چوتھے صیغے میں اسم ظاہر فاعل آتا ہے بس. ظاہر. گردان ماضی کی ہوتی ہے، اس کا پہلا اور چوتھا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ خرجہ خراجات ہوتا ہے نا. جی جی. اور مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ یخرجو اور تخرجو، ہے نا. تخرج. چوتھا تخرجو ہوتا ہے. تو یخرجو اس میں تخرجو ظاہر ان کے بھی آ ساتھ سکتا ہے، اور یہ بس. بس پوچھتے اتنا ہیں. نہیں، اس کے بعد ہاں. نہیں آئے گا. اس کے بعد نہیں آئے گا اسم ظاہر ہاں. فاعل. جب ہوں. فعل کا یہ والا صیغہ ہوگا نا، پہلا والا، تبھی اسم ظاہر فاعل آئے گا. اب یہ مذکر ہوگا تو فعل مذکر صیغہ لائیں گے. اگر یہاں مریم ہوگا تو یہاں پہ خرجت لائیں گے. خراجت. جی. ہاں، جی تو ما کا مطلب ہے خالد اس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. جی. خرجہ حامد ما خالدن، حامد جو ہے وہ اس کے نکلا، ساتھ نکلا خالد کے ساتھ. خالد کے ساتھ. خالد کے ساتھ. تو یہ ما خالدن کیا بن جائے گا؟ ظرف مضاف الیہ. ظرف مدافع. اس کو ظرف مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جملہ یہ تو جملہ فعلیہ میں آ رہا ہے. اس کو خبر تو نہیں بنائیں گے نا؟ مجھے بتائیں، ابھی خبر نہیں، بنائیں گے؟ متعلق کے فیل ہو جائے گا نا. ہاں، جملہ فعلیہ میں اس کو متعلق فعل کہیں گے. جملہ اسمیہ میں اس کو کہیں گے، اگر یہ خبر بن رہا ہے تو اس کو شبہ جملہ خبر کہیں گے. جی جی. ذهب الطبیب مع المہندسی، فعل فاعل، اور یہ کیا بن جائے گا؟ بس یہ متعلق 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 کے فیل. متعلق کے فعل. متعلق فعل. فعل. یہ جوڑی دار ہے جار مجرور کا. ان دونوں کو، جار مجرور کو، اس ظرف مضاف الیہ کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ جملہ. شبہ جملہ. یہ دونوں کیا بنتے ہیں؟ یہ متعلق بنتے ہیں. جملہ فعلیہ میں آئیں گے تو متعلق فعل، اسمیہ میں آئیں گے تو متعلق خبر. متعلق خبر. ہاں، لیکن اگر خبر موجود ہی نہیں ہے تو پھر خود شبہ جملہ خبر بن جائیں گے قائم مقام. تو یہ پریکٹس سے ہوگا، پریکٹس نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. اب یہ فائل بنا ہے تو یہ متعلق فعل ہی بنے گا نا، کیونکہ پیچھے فعل آ رہا ہے. جی. مم ما کا یا علی، تمہارے ساتھ کون ہے؟ اے علی. ٹھیک ہے. جی. مائی میرے ساتھ زمیلی. میرا دوست ہے. زمیلی. میرا بس اب دوست. یہ مائی کیا بنے گا؟ یہ نظام. مدافع بن. ظرف 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 مدافع. مداخل ہے. تو یہ کیا جی بنتے ہیں؟ ظرف مداخل ہے. اور یہ جار مجرور کیا بنتے ہیں؟ شبہ شب جملہ خبر. شب شبہ جملہ. جملہ. شب جملہ خبر بنتے ہیں. شب جملہ جی. خبر. خبر. جب شبہ جملہ خبر. جملہ نہیں، شب جملہ. اور مفرد کے حکم میں بھی نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ جی. مرکب ظرف مداخل ہے. جار مجرور اور ظرف مداخل ہے، شب جملہ خبر مقدم بنیں گے. اور ضمیلی کیا بن جائے گا؟ مبتدا خبر. مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر بن جائے گا. ٹھیک ہے. جی.
اگر آپ اس کو مبتدا بناتی ہیں، اس کو بنا ہی نہیں سکتے مبتدا، جار مجرور کو مبتدا بنا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، اسی طرح اس کو بھی نہیں بنا سکتے، یہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں شبہ جملہ خبر ہی بنتے ہیں، چاہے شروع میں آئیں یا بعد میں آئیں، انہوں نے خبر ہی بننا ہے، شبہ جملہ خبر۔ اور ضمیلی کیا ہے؟ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ اب اگلا موقع دیکھیں، آمنۃ مع زوجہا، آمنۃ مبتدا بن گیا، معہا کیا بنے گا؟ شبہ جملہ شبہ خبر، جملہ خبر بنا دیں گے تو اس کو کیا بنائیں گے؟ اچھا شبہ جملہ، ہاں جی، اس کو کیا شبہ بنائیں جملہ گے؟ زوجہا۔ مضاف الیہ مبتدا خبر، مؤخر۔ اصل میں پتہ ہے کیا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، آمنۃ کو مبتدا بنا لیں اور ان جی دونوں کو ایک ساتھ کر لیں، جی ان دونوں کو ساتھ جی ملا کے تو کیا بنا لیں؟ اس کو شبہ جملہ خبر بنا لیں اور اس کو مبتدا مؤخر بنا لیں، جیسے یہ والا بنایا تھا، جی ٹھیک ہے نا؟ تو بالکل اسی طرح یہ مبتدا تو ہے نا پہلے سے ہی مبتدا آمنہ مبتدا ہے نا، تو اس کو رہنے دینا، کوئی بات نہیں، ڈبے میں ڈبہ نہیں ہوتا، جی ڈبے میں ڈبہ ہوتا ہے نا، ہوں ٹھیک ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ شبہ جملہ خبر ہے مقدم، تو یہ دونوں مل کے جملہ اسمیہ بن گیا، تو میں نے جملہ اسمیہ کو خبر نہیں کہا کیا؟ جی جی، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ ہاں، خبر تو بن یہ سکتا جملہ اسمیہ بن کے یہاں پہ آپ کی خبر آ رہی ہے۔ خبر بن گئی۔ اچھا جی اب ایسے بھی بنا سکتے کس کی خبر آ رہی ہے؟ اس مبتدا کی آ رہی ہے، مبتدا ہیں۔ پلس جی خبر از اکول ٹو جملہ اسمیہ، آل ٹوگیدر یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ جی جی جیسے آپ ڈبے ایسے بھی پیک بنا کرتے ہیں نا، آپ ڈبوں کو پھیلا دینا، اور ڈبوں کو سمیٹنا کیسے ہے؟ بڑے ڈبے کو پہلے رکھتے ہیں، پھر اس میں چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، پھر پورا پیک کر دیتے ہیں، کبھی کیے اس طرح جی بچوں کے لنچ؟ جی وہی جی والا کیا ہاں حال کرتے ہے۔ ہیں؟ ہاں، تو یہ ایک تو چھوٹا ڈبہ ہے، استاذہ، یہ ایک چھوٹا ڈبہ ہے نا، اس کو آپ نے اندر رکھا، خبر بنایا چھوٹے ڈبے کو، اور اس کو آپ نے مبتدا بنایا، پھر ان دونوں کو پلس کر کے آپ نے یہ دونوں کو جملہ اس میں بنا دیا۔ اچھا اس طرح بھی بنا سکتے ہیں، مجھے یہ تھا کہ ماہ کو ہم شبہ جملہ خبر کہہ کے تو اس کو ہم خبر بنائیں گے، متعلق کی خبر، وہ اس کو میں نے یہ اس کو متعلق خبر کیسے بنائیں گے؟ نہیں متعلق خبر تو جار مجرور ہوتے ہیں نا، شبہ جملہ ہوتے ہیں یا ظرف مداخلہ ہوتے ہیں، یہی دو بن سکتے ہیں بس، جی جی شبہ جملہ صرف دو ہی بن سکتے ہیں، جار مجرور اور یہ والا۔ تو جتنی پریکٹس کریں گے نا اتنا اچھا ہے، ٹائم تو لگتا ہے، ٹھیک ہے، جان بھی لگتی ہے، لیکن یہ ہے کہ چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے، تبھی قرآن کو بھی سمجھیں گے نا، اس کا ترجمہ سمجھیں گے کہ یہ والا جی جملہ الگ ہے، یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے، اور یہ مبتدا ہے، یہ پورا جملہ اسمیہ خبر ہے، ٹھیک ہے، یہ میم مبتدا یہ ہے، جو جار مجرور ہوتے ہیں یہ متعلق نہیں بنتے نا؟ جار مجرور خبر جو ایک خبر ہمارے پاس ہے، اور ہم، میں ایک اور کوئی چیز پتہ لگ رہی ہے جو جار مجرور نہیں ہے، تو وہ متعلق ہو جائے گی؟ یہاں پہ آپ کا یہ مبتدا مؤخر ہے اور اس کو آپ خبر مقدم بنائیں گے، ٹھیک ہے، اگر آپ کی خبر پہلے سے موجود ہے نا جملے میں تو پھر ان کو متعلق بنائیں گے، لیکن اگر اچھا خبر ہی نہیں ہے تو پھر ان کو آپ خبر بنائیں گے نا۔ یہ ان کا اصل کام جو ہے یاد رکھیں، جار مجرور ظرف مداخلہ کا اصل کام یہ ہے کہ ہمیشہ یہ متعلق بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں؟ متعلق متعلق۔ بنتے ہیں۔ لیکن اگر جملے میں خبر ہی نہیں ہے، جیسے الحمدللہ کی مثال لے لیں، تو اب اس میں خبر نہیں ہے نا، تو اب یہ اس کو متعلق بنا لیں گے، اس کو مبتدا بنا لیں گے، تو خبر کہاں ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں، تو پھر ہم کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ قائم مقام خبر، اب اس کو متعلق اچھا، نہیں بنائیں گے یہاں پہ، اس قائم کو مقام خبر۔ قائم مقام خبر، تو یہ دو چیزیں بن سکتے ہیں۔ جملہ فعلیہ میں تو انہوں نے متعلق فعلی بننا ہے اور کچھ نہیں بننا، ہوں جار مجرور ہو یا ظرف مداخلہ، مگر وہ لیکن استاذہ جملہ ایک اسمیہ میں یہ دو چیزیں بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تو آپ ان مگر کو خبر موجود ہے تو متعلق بنا دیں، متعلق خبر، اور خبر موجود نہیں ہے تو ان کو خود خبر بنا دیں، قائم مقام۔ اچھا، خرجہ ابھی، اب یہ فعل ہے، اس میں یہ فاعل بنے گا، فائل بننے کی اس میں کوئی سائن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں لیکن پھر بھی بنی جی ہاں، تو یہ آپ کا یہ ابو، یہ مرفوع ہی تھا لیکن یا نے اس کے دمے کو نیچے کھینچ لیا، یہ ابو نہیں تھا، جی تو یہ آپ نے یا نے نیچے کھینچ دیا، تو ابھی تینوں حالتوں میں فاعل بن رہا ہو، مفعول بن رہا ہو، مجرور بن رہا ہو، ابھی رہتا ہے،
अभी ये मूसा की तरह आपको कुछ सोच के बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे फाइल बनेगा। ये निकला आपने बताया कौन, था। निकले कौन, निकले मेरे अब्बू निकले घर से, तो ये मुतालिक बन जाएगा, मुतालिक के फेल बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जी शिव जुमला नहीं बनेगा, जी शिव जुमला खबर नहीं बनेगा, क्योंकि जो मुब्तदा ही नहीं है तो खबर क्यों बनानी है, तो इसको मुताल्लिक के फेल हम्म बनाएंगे। मन यहाँ पे मुब्तदा आ गया, खराजा माआहू। अब देखें खराजा, इसमें हुआ जमीर है जो कि मन की तरफ जा रही है। माआहू क्या बनेगा, सर मुताल्लिक के ज- फेल बन जाएगा। जी ज़र्फ मुतालिक के मुदाफिल फेल। है, मुताल्लिक के फेल बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये मुरक्कब इजाफी। खराजा है, उसको मफूल की जरूरत नहीं होती, ये मुताल्लिक के फेल बन जाएगा। खराजा माआहू अम्मी, अम्मी मेरे चचा। तो खराजा फेल हो गया, और उसके अंदर हुआ जमीर हो गई, और माआहू मुताल्लिक हो गया, मुताल्लिक के फेल, ज़र्फ मुदाफिल है, मुताल्लिक के फेल। और अम्मी क्या है, ये आपका इसको क्या बनाएंगे, फाइल बनाएंगे। फाइल यहाँ पे आ गया। निकलने वाला कौन है, चचा है ना, तो चचा जी ही जी फाइल होंगे ना, चचा ही फाइल होंगे ना। मेरे चचा। हाँ मेरे चचा फाइल है, और ये फेल है, और ये मुताल्लिक के फेल है। ठीक है। वैसे जी अम्मा बोलते हैं चचा, वो चचा को हम अम्मुन बोलते हैं, फिर या लगाते हैं तो अम्मी हो जाता है ना। अम्मुन चचा बोलते हैं। आमामुन उसकी जमा होती है, बहुत सारे चचा। तो ये अम्मुन में जब पेश एक करेंगे और या लगाएंगे तो अम्मी बन जाएगा ना, यहाँ पे तशदीद जी की। अच्छा बाकी क्या है, बैतुन, बैतु का बैतु हूँ, इसका तर्जुमा सबको आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। जी अपना काम करें, मैंने कर दिया है। अबी व उम्मी फिल बैती। अब अबी व उम्मी, ये पूरा मुब्तदा अम्मी और बनेगा इस। अब्बू। हाँ इसको तोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। जी ये आपकी जमीर मजरूर मुत्तसिल है, ये भी मजरूर मुत्तसिल है। मजरूर मुत्तसिल जी। और ये बन जाएगा मुब्तदा, और ये खबर बन जाएगी। कौन सी खबर खबर जार की, कौन मजरूर सी, जार मजरूर, शिब जुमला। मुताल्लिक की। शिब जुमला खबर। जी मैं शिप जुमला खबर। हाँ जार मजरूर और ज़र्फ मुदाफिला शिब जुमला खबर होते हैं। और जी मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी वगैरह वो मुफरत खबर होते हैं। ठीक है। जी अब यही चीज हजम नहीं हो रही ना तुम लोगों को, कि वो मुरक्कब है तो नहीं मिस मुफरत हो कैसे। गई। हाँ। ऐना अबू का या हम अपना काम करेंगे तब होगी, अगर यहीं पे छोड़ दिया बस तो फिर नहीं होगी। ऐना अबू का मजरूर मुतसिल जमीर है, अबू का मुजाफ मुजाफिल है, तो ये क्या बनेगा जुमले में, मुब्तदा बनेगा, और इसको खबर बनाएंगे। ठीक है। ज़हाबा लस्सू की फेल, और फाइल इसके अंदर ही है, हुआ पीछे जा रही है, लस्सू की उसकी उसका मुताल्लिक बन जाएगा। इस तरह हाँ गौर करना है जुमलों पे। ठीक है। अब मैं जा रही हूँ, मेरी नमाज का टाइम थोड़ा सही रह गया, मैं पढ़ लूँ फजर की। जी जी अभी ये मेरा टाइम ही सेटल नहीं हो रहा। बाकी इसमें यही जरूर। है, गौर करना है क्या क्या बन रहे हैं। जैसे ये मुब्तदा बनेगा, जुमले के शुरू में आ गया, अब इसको फाइल थोड़ी बनाएंगे क्योंकि पीछे फेल ही नहीं है। तो ये मुब्तदा बनेगा, फिर ताइफी खबर बन जाएगी, फिर ये दूसरा जुमला है मुब्तदा बनेगा, फिर ये पूरी खबर बन जाएगी। और खबर की कौन सी किस्म बनेगी ये भी सोचना है, शिप जार जुमला। मजरूर शिब जार जुमला, मजरूर। शिप जुमला। और ये मुब्तदा बनेगा। ठीक है ना, जी इस तरह आपने करना। हाजत तालिबू अबू वजीर। अब देखें यहाँ पे आपका ये जुमला इस्मिया बन के, अबू मुब्तदा है, वजीर खबर है, तो ये जुमला इस्मिया बन के आपकी खबर बन रही है, और ये आपका पूरा मुब्तदा बन रहा है। मुब्तदा हाजिर तो तालिब। इस तरह मुब्तदा। आपने करना है इसको भी। इसी तरह जहाबा अखी, अखी फाइल बन जाएगा इसका, और ये मुतल्लिक के फेल बन जाएगा। आपस में करें, कोई टाइम निकालें और सब मिल के, जो थोड़ी कमजोरियां रह जाती हैं, ये जहाबा फेल है, ये फाइल है, और ये उसका मुतल्लिक है। बाकी मोहम्मद और खालिद और उसा, अब ये वाले नाम जो होते हैं ना, अरब नाम, अरब तो ये भी है, और अरब ये भी नाम है। तो अरबों के नाम पे कभी तनवीन आती है और कभी एक पेश आती है, ऐसा क्यों है, ये मुनसरिफ है, ये गैर मुनसरिफ है, जी क्योंकि गोलता आ गया है। बोलता है। जी जब अरबों के नामों पे गोलता आ जाती है तो फिर उसके ऊपर एक ही पेश लगती है। गैर और मुनसरिफ। अलिफ और नून भी आएगा तो भी एक पेश आती है ना हाँ उस्ताजा हाँ आखिर में। हाँ, वो भी होता है। लेकिन जैसे आयशा तू पे एक, आयशा तू है ना, या फातिमा तू है, तो ता के ऊपर जी एक, जी बस वही है, यहाँ भी गोलता आएगी जब भी किसी नाम के ऊपर वो मोन्नस ही हो। लेकिन उसको आप मोन्नस तो नहीं कहेंगे ना, कि ये नहीं मोन्नस हो, नहीं नहीं। आप उसको गैर मुनसरिफ कहेंगे, लेकिन मुजक्कर ही कहेंगे। जी ठीक है। बाकी इनको लगाना है आपने, तो जो जो गोल ताव वाले हैं, उन पे एक पेश लगा देना, और बाकी पे
अच्छा, जमील क्या है? नए स्टूडेंट का मतलब देता है क्लास फेलो, ज़ौज, मर्द को भी कहते हैं, शोहर को भी और बीवी को। और शोहर दोनों, स्पाउस के ऊपर बोला जाता है, स्पाउस दोनों। वाहिद वन, फतन नौजवान, यंग मैन, इसको अलिफ लाम लगाएंगे तो अल फता हो गया था पीछे। मा अतिफलु, तिफलु नहीं होगा, हाँ ये मा आ अलग है, अतिफलु अलग है। मा का मतलब होता है विद, साथ, अतिफलु बच्चा बच्चे के मुजक्कर, साथ। और ये अलकुवैतु। ठीक है, फिर ये हमने जमायर पढ़े, ये आपने जरूर पढ़ना है। ठीक है, फिर देखना है जमीर यहाँ पे क्या बन रही है, मजरूर मुतसिल, मजरूर मुतसिल, मजरूर मुतसिल। मिस हम कल ये बुक करेंगे, मदीना बुक? नहीं, हमारा ये लेसन खत्म हो गया, अब इसको खुद आपने पढ़ना है, और मैं अब बुक 2 ही शुरू कराऊंगी। ये जितने भी चलिए पॉइंट्स हैं ना, ये आप पढ़ेंगे, ये फजूल मिस, के बुक नहीं। भेज दीजिएगा। बुक आपके पास नहीं है ये वाली? नहीं मिस, मैम को मैसेज भी किया है। इंग्लिश की बुक चाहिए ना आपको? इसमें जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, वही उर्दू की बुक में भी लिखे होते हैं। तो मिस मुझे यही वाली भेज दें ताकि मैं किसी से भी प्रैक्टिस तो करूं। हाँ करें, ठीक है। कोई अपना अपना बड्डी बनाए और दोनों मिलके किया करें, ठीक है, ताकि आपकी जात से मैम किसी को संडे फायदा संडे हो। को मैं प्रैक्टिस करवाती हूँ, उसमें बस 2 लड़कियां ही आती हैं शाम में। कोई बात नहीं है, एक भी आए तब भी करवाएं, आपका फायदा हो रहा मैम, है, आपका कल फायदा में हो रहा है, बेसिकली आपका फायदा हो रहा है। माल हाँ खर्च जी, पता मेरी करते तो हैं, है खर्च करते हैं तो किसका फायदा होता है? माल खर्च करने वाले का फायदा होता है। जिसको दे रहे होते हैं उसको नहीं, उसका नहीं फायदा हो रहा होता। उसका तो हो ही रहा है, लेकिन आपका डबल हो रहा है। ठीक है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह वालेकुम खैर कसीरा। वालेकुम आज सलाम जज़ाकल्लाह। आज रहमतुल्लाहि का सबक वबरकातुहू, बहुत जज़ाकल्लाहु इम्पोर्टेंट था, खैर। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ओके, बहुत अच्छा समझाया आपने। क्या जी करूँ, हम सब बहुत